Hello and welcome back to Grey Beyond Narratives, the YouTube channel where we investigate the stories that lie beneath the headlines. Today we'll talk about the latest development in the Israel and Palestine conflict as well as the current ceasefire. As you may be aware, Israel and Hamas have been at odds since October 7, 2023, when Hamas launched a land, sea, and air assault from Gaza on Israel. The October 7 attack killed over 1,200 people in Israel, the majority of whom were civilians, and was the most intense and deadly escalation of violence since the 2014 Gaza war. The attack also sparked a wave of hostage taking by Hamas, which kidnapped scores of Israelis, both soldiers and civilian, and deported them to Gaza. The war lasted for days until Egypt, Qatar, the United States, and the United Nations announced a ceasefire. The ceasefire was based on an unconditional and mutual cessation of hostilities. With no preconditions or guarantees, the truce, however, is fragile and can be broken by any provocation or violation. The prisoner exchange agreement between Israel and Hamas is one of the most significant outcome of the ceasefire. But what does the ceasefire mean for the region's future and peace prospect? What are the various actors' perspectives on the outcome of the conflict and their role in the mediation? And what are the main challenges and opportunities for keeping the ceasefire and addressing the underlying issues? These are some of the questions we hope to address during this live session. We have our usual hosts as well as some new guests. Now I'm going to move towards Shaji. Shaji? Thank you very much. As Maham has mentioned, that we have witnessed in the last 24 hours some negotiations taking place, some outbursts in those negotiations, and few recollections. So it's a volatile time. I would straight away want to go to Alicia B and would like to hear what he has to say in regards to this, how he views this, and then we'll move to the other people. Uh, does so Ali bhai आप इस पूरी चीज को किस तरह व्यू कर रहे हैं and do you think this is the end of this conflict? What are going to be the resolutions if there are going to be any? Is this just a temporary move which is just going to fade away? What do you exactly think is the deal? बोलें अली भाई। जी शुक्रिया शाह जी शाह साहिबा महम शुक्रिया आपका आपने मौका दिया और मैं इसके बारे में शाह जी दो टोन्स में बात करना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस के लिए, आपके पैनलिस्ट के लिए। और अगर आप इजाज़त दें तो एक टोन, ये मेरी टोन नहीं है, ये आपके फॉर्मेट की और डिबेट डिस्कोर्स कह लें या मतलब क्लब हाउस की ज़बान में कह लें। ये एक्चुअली मैं ख़ास तौर पे शाह जी और दोस्तों को जो आपके सुनने वाले हैं, जो आएंगे सुनेंगे इसको, जिनका ख़ास ताल्लुक़ है मतलब किसी एक रिलीजन से, मतलब इस्लाम से, जो मुसलमान जो मुसलमान है, मैं उनको चैलेंज करने लगा हूँ इस टोन में कि सिड साहब कहाँ गए आपके वो मुसलमान और वो मोमिन और वो वाले हार्डकोर जो मजलूम के लिए खड़े होते हैं। आज करबला लगी हुई है, आज मौला इमाम हुसैन के जो उनकी खिदमत करने के लिए, हाजिरी देने के लिए आते हैं, वो सीन लगा हुआ है। पेश होएं, खड़े हो जाएं आके मजलूम के साथ और उनका साथ दें। बात ये है कि बस मैं इन क्लोज कॉमर्स मतलब ये मैं कैप्शन करना चाहता था। बात ये है कि हर बंदा, जितने भी बंदे हों, इसको जितना भी कॉम्प्लिकेटेड, जितना भी मॉडर्न, जितना भी जियो पोलिटिकल और फैंसी वर्ड देके कंफ्यूज और सिंपलिसिटी से दूर करें, ये सब जो है बकवास है। आपकी ऑडियंस को मैं बता दूं कि ये बिल्कुल सीधी सी एक लफ्ज़ की कहानी है, बल्कि दो लफ्ज़ों की कहानी है जो लोगों को समझ में आ जाए। ये एक जालिम और मजलूम की कहानी चल रही है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। आपके पास वो कोई ज्यूडिज्म लेके आ जाएगा, कोई ज़ायनिज़्म लेके आ जाएगा, कोई इस्लाम लेके आ जाएगा, अरब लेके आ जाएगा, आपके सामने कोई रिसोर्सेज का रोना लेके आ जाएगा, आपके सामने रेसिज्म ले आएंगे, आपके सामने कंट्रोल ऑफ ऑयल एंड गैस ले आएंगे,
राइवलरी मुस्लिम कंट्रीज की, नॉन मुस्लिम्स की, सारी सेंसें लड़ाते रहेंगे। ये सब आपको हेल्प आउट करें सिंपल इक्वेशन करने में तो बेहतर है, नहीं तो इन चीज़ों में बिल्कुल ना करें। सीधा आपके सामने एक यजीद है इस टाइम, उसके खिलाफ आप लोगों ने खड़ा होना है। और अब कहाँ, अब दूसरी बात, मैं आपकी दूसरे पैनलिस्ट को भी मौका देना चाह रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता। शाह साहिबा, एक मुझे महम साहिबा, एक मुझे जुमला कहने की इजाज़त दे दें, 2 मिनट मैं आपकी मजीद लूँगा। वो ये बात है कि कहाँ गए वो आपके सारे लोग जो ये सारी बातें इसको कॉम्प्लिकेटेड करके एक तो ये सिंपल चीज को नैरेटिव नहीं पेश कर रहे। दूसरी बात, सारी रेस तो दुनिया में नॉन मुस्लिम्स जीत गए हैं, मुस्लिम्स तो पीछे रह गए हैं। जितना प्रो फलस्तीन और जितना मजलूम के साथ आज की डेट में आपके गैर मुस्लिम खड़े हुए हैं, वो चपेड़े मारनी चाहिए सब लोगों को साउथ अफ्रीका के मुकाबले में। वो कहाँ ईमान के किस मकाम पे वो खड़े होंगे और हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन और एवरीवन इन दिस रूम, शाह साहिबा और शाह जी का ये फॉर्मेट है, उन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की है। मेरा ये दूसरी बैठक है आप लोगों के साथ। कंक्लूजन जनाब यही है आपके लिए कि जालिम मजलूम की लड़ाई में साफ नजर आ रहा है मजलूम कौन है, जालिम कौन है। और इसको काइंडली कॉम्प्लिकेटेड ना करें, सिंपल रहने दें और आगे बढ़ें। और इस रेस में इसको मुस्लिम फ्लेवर देने की, नॉन मुस्लिम और वो क्या कहते हैं अरब फ्लेवर देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल है, जिसने मजलूम के साथ खड़े होना वो विनर है। तो शुक्रिया शाह जी, आपने मौका भी दिया। मैम साहिबा, शाह साहिबा, शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया। अली भाई, आई वुड फर्दर लाइक टू क्वेश्चन यू on a few things which you said. आपने सीज फायर की तो थोड़ा सा आपने मजलूम और वो बड़ी बात की, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इस सीज फायर का क्या रिजल्टेंट होगा? ये लास्ट करेगी, ये लास्ट नहीं करेगी? आगे इसमें क्या सिचुएशन डेवलप होती हुई आपको नजर आ रही है? डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू एंड over here, or this is a beginning of something more? या ये 2 या 3 दिन के बाद फिर से बिगिन कर? जी जी शाह जी, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने और मेरा इसका जवाब थोड़ा सा यही है। सिंपल टर्म में यही जवाब है कि जी कोई सीज फायर नहीं चलना, कोई पॉजेज नहीं चलने। ये वो जोर का झटका धीरे से लगे जो ऐड थी उस तरह की बात है। ये मैं आपके सामने, आपकी ऑडियंस के सामने दूसरे फॉर्मेट्स पे एक पेश कर चुका हूँ। मेरा ख्याल है श्योर फरहान ने भी सुनी होगी मेरे से बात, कि मेरी एक एनालॉजी है घटिया इंसान की और घटिया फितरत रखने वाले ग्रुप की या लोगों की या इंसानों की। उनकी घटिया से जो जितना घटिया तरीन इंसान होता है उसकी एक खासियत है जो दुनिया के हर घटिया इंसान में कॉमन है। वो ये है कि वो हमेशा अपने से ताकतवर के पाँव चाटेगा और अपने से कमज़ोर को पाँव मारेगा, उसको नीचे दबाएगा। और यही इस टाइम जो है इस जालिम की, बाकायदा मैं नाम लेके बता रहा हूँ, जो मौजूदा इजरायली गवर्नमेंट है, जो ये लोग जुल्म कर रहे हैं, जो ग्रुप, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनमें ये देखिएगा, चूंकि वो इनको दबा सकते हैं तो उन्होंने क्यों सीज फायर करना है। आपका 4 दिन चल जाएगा, 6 दिन चल जाएगा, जंग बंद हो जाएगी, 2-3 महीने सीज फायर लग जाएगा, कहेंगे जी बंद है, लेकिन वहाँ हर रोज जंग है, हर रोज जुल्म हो रहा है गुज़श्ता 15, 20, 30, 40 सालों से, और वो ऐसे ही चल रहा है। उसमें कमी आ गई, आप उसको कहेंगे कि जी हाँ जी सीज फायर हो गया हुआ है जी, जंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। लेकिन जब वो बच्चों को उठाते हैं तो वो सीज फायर नहीं होता वहां से। एक बात। दूसरी बात, मेरा ख्याल है फरहान का भी ध्यान होता है इस तरफ। फरहान, आपने एक इवेंट देखा है रिसेंटली कि शेम ऑन यू एंड वुमेन, शेम ऑन ये, शेम ऑन फलानी लड़की, शेम ऑन द गर्ल, शेम ऑन द वुमेन ऑफ यू एन, शेम शेम कह के तो कैसी बोलती बंद हुई। किसी ने सुना है उस बात को कि कैसी बोलती इसराइल के उस वजीर के, उसकी रिप्रेजेंटेटिव की बोली बंद हुई जब चाइना वाले ने खड़े होकर कहा कि बिटवीन द, मतलब उसकी स्पीच को कहा कि प्लीज वॉच योर टोन, दिस इज नॉट द टोन इन यूनाइटेड नेशंस, रिस्पेक्ट द रूल। और साथ में वो चुप हो गया, यस 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 यस।
अगर यही टोन जॉर्डन के किसी ने, वजीर ने या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने या किसी और ने भी की हुई, उस वक्त तो बात नहीं होती। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शाह जी की सारी ऑडियंस को, आपके ये जो बियॉन्ड नैरेटिव्स के ग्रुप के सुनने वाले हैं, कि घटिया इंसान की, आप चाहे वो आपके हमसाए हों, चाहे आपके छोटे लेवल पे, आपके मतलब हमारे माइक्रो लेवल के ऊपर घरों में रहने वाले अजीज दोस्त, जानने वाले हमसाए, या क्लास फेलोज मेट्स, या वो बड़ी गवर्नमेंट हो, ये फितरत आप हमेशा उनमें पाएंगे। शाह जी, सवाल आपका जवाब मैंने डायरेक्ट बिल्कुल जिसको मतलब कहते हैं कि खुल के दिया है, आई डोंट वांट यूज अदर वर्ड, वो यही है कि ये सीज फायर सो कॉल्ड, उसमें देखने में मोमेंटम कम ज़्यादा होगा, लेकिन ये अल्टीमेटली तभी होगा जब दो स्टेट जो है वो बाकायदा तौर पे ये अवाम उनकी मान जाएंगी। और लास्टली आपके इसको री कर दूं, अभी आज ही का बयान आ गया आपके उसके एक्स प्राइम मिनिस्टर का, कि नेतन्याहू हैज़ टू गो, और ये बिल्कुल इस तरह फलाना, उसके काफ़ी अगेंस्ट बयान आया। तो वहाँ भी हैं लोग जो जेन्युइन बिलीव करते हैं बॉर्डर की दूसरी साइड जो मौजूदा इसराइल है, कि दो टू स्टेट यूनियन होनी चाहिए जी, टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए जी। शाह जी, शुक्रिया। जी, जी, शुक्रिया। तो इसका क्या रीज़न है आपके ख़्याल से? आई विल मूव टू आप इसका जवाब दीजिएगा एंड देन वी विल मूव टू आदित्य। आप ये बताएँ अली भाई, व्हाई इज़ दिस सीज़फायर टेम्परेरी? और ये टेम्परेरी सीज़फायर के बाद करना क्या चाह रहे हैं? Are they going to basically go back to fighting? Why has this ceasefire occurred and what are they trying to achieve in these 3 days? और आज वो एक्सटेंड भी उन्होंने कर दी है थोड़ी सी। तो इस टेम्परेरी पॉज को, rather than referring it to as a ceasefire, what's the purpose of it? Why is it शाह जी, temporary? शाह जी, मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि जो जालिम था उसने तो ये कभी करना नहीं था। उन्होंने तो अपने जुल्म का जो पूरा साउथ तक को लपेटना था, कि अपनी दिखाना था जी कि हमने वाकई जो वर्ड में कहा है, जो स्टेटमेंट्स दी हैं कि ग्रेवयार्ड बनाएंगे, वो हमने बना देना था। ये आप जैसे लोगों का, ये जो आप लोग इस तरह के फॉर्मेट लेके बैठे हुए हैं और सब लोगों को अवेयर करवा रहे हैं, इस तरह के हज़ारों प्लेटफॉर्म्स, हज़ारों किस्म के लोगों की, लाखों बल्कि दर्जनों हज़ारों लोगों के लोग जो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड का नैरेटिव हो गया, उससे मजबूर होकर ये पॉज किया है। ये पॉज जो आगे जाके सीज फायर में तब्दील होगा, और सीज फायर आगे जाके वो जंग बंदी में तब्दील होगा, और उससे आगे जाके कम मतलब अरेस्ट होंगी डेली बेसिस पे, लेकिन ये मोमेंटम कम होगा, लेकिन ये चलता रहेगा। ये हमारे, ये कोई नेकी से के लिए नहीं किया गया, ये डर के किसी की छितरोल की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये प्रेशर की वजह से हुआ है, और इसमें कोई मतलब वो कोई हैरानगी वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। इनको ये ज़बान समझ आती थी जैसे। और लास्ट में कंक्लूड आपके क्वेश्चन को फिगर्स के साथ, फैक्ट के साथ, आई डोंट वांट से फैक्ट्स बट कुछ सर्वे के साथ करता हूँ, कि ऑनवर्ड 7 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जब सर्वे लिया गया है, तो उसमें ये डिफरेंस जो सिर्फ अमेरिका में वो रेशो थी 39 और 41 की रेशो थी गालबन, मतलब 61 या 39 की रेशो थी, कि 39 जो है वो प्रो पैलेस्टीनियन थे, और 61 जो है, सॉरी, 39 प्रो इसराइली थे, 61 उसके बाद जुल्म का 61 थे, प्रो पैलेस्टीनियन 61 थे, तब भी ज़्यादा थे। रिसेंटली 2 वीक पहले या 10 दिन पहले, 10 दिन तकरीबन पहले, वो फिगर्स 95 और 5% हो गया, कि 95 लोग फ़लस्तीनी के, ये मेरे नंबर्स नहीं है, आप गूगल स्टडी से कर सकते हैं, या लुक अप टू दीज नंबर्स, कि जो 95 5 हो गया, कि 95 प्रो फ़लस्तीन 5, और ये सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है। तो आप देख लें कि बात किस तरफ जा रही है। तो आई होप, डिड आई होप अगर आप क्वेश्चन का एड्रेस हो गया शायद, नहीं तो आप दोबारा मुझसे थोड़ा डिस्कस करें। नहीं, नहीं, I just wanted your opinion on that. I was reading a few articles और कुछ लोगों के comments हुए जो on ground पैलेस्टाइन के अंदर रहते हैं, and they basically stated today one of the biggest headlines coming out today was that it has been more painful
during the ceasefire to walk out onto the streets where once buildings stood and now these are empty places full of rubble. So people lost livelihoods. It has been turned into a graveyard. एक एक तो वहाँ पे जो जो डिटेल्स हैं वो जिस तरह उसकी थोड़ी बहुत कवरेज हो रही है, जिस तरह आपको रोड साइड्स के ऊपर रबल उठाने के बाद अंदर ही बच्चे क्या और औरतें क्या और आदमी क्या आपको पता ही नहीं है वो किसके लिम्स पड़े हुए हैं. Like you don't know who was doing what in those in those times. उसका रिजल्टेंट तो बड़ा ही सिंपल है कि it has been turned into a graveyard. There is no doubt. लेकिन again मेरा main question and what keeps striking me since I heard about this temporary ceasefire is कि why has this taken place if it's not permanent? इसकी कोई तो वजह होगी. So with that, I'll move to Aditya with the same question. शाह And जी, मुझे भी एक क्वेश्चन आपको करने की इजाजत होनी चाहिए जब आप मुझे जी मौका आप देंगे. जो देखें अली भाई यहाँ पे ये है कि जो भी आपको बात करनी है आप जितना मर्जी टाइम दें और इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस देयर इज जी, नो मेरा शाह इश्यूज जी इन दैट. आपको क्वेश्चन है क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा आपको सुना है और आपकी इस पे ग्रिप भी होती है, आप कनेक्टेड भी हैं मतलब वेस्ट और ईस्ट से. सर जी, मुझे सादी ज़ुबान में आपकी ऑडियंस के लिए, ख़ास तौर पे मेरी क्यूरियोसिटी के लिए बताएं और मुझे ये बताएं आप, आप अपने पैनलिस्ट से भी पूछ के बताएं कि मुझे एज ए प्योर मतलब नॉन रिलेटेड टू दिस इशू फर्ज कर ले, थर्ड पार्टी रिलेटेड टू कह दें, मुझे ये बताएं कि अगर सिड फर्ज करें मिसाल के तौर पे सिड सदीकी साहब जो है वो पता नहीं कौन से मुल्क के हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फर्ज कर लें ये इसराइल के हों, तो अगर ये इसराइल के हों तो एज ए इजराइली सिड साहब के किस तरह फ़ायदे में है जो इसराइली हुकूमत जो कुछ कर रही है, ये इसराइल के नेशनल इंटरेस्ट में कैसे है. मुझे कोई साइंटिफिक मेथड से बता दें, सिंपली 1+1 से बता दें कि इसराइल को लॉन्ग टर्म में आज से 20 30 40 साल पहले बाद में ये कैसे लॉन्ग टर्म में उनकी ये पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ उनके काम में आएगी. ये आपके लिए सवाल है शाह जी. Shaji, your mic is muted. You have to unmute. देखें अली भाई आई डू नॉट थिंक कि इट इज इन their benefit, at least not in the benefit of the local populace, because they have a lot to lose in regards to that. They are losing. But obviously एक hegemony create करने के लिए they're trying to do that. I don't think कि इसका कोई उन्हें long run के अंदर benefit हो सकता है. Other than if they're able to completely overrun the surrounding countries and the surrounding area. This is a long lasting, persistent thing. So this is not a solution. I don't think this is they're looking for a solution. Or सेट को आपने एग्जाम्पल बना के डाला था. सेट अगर इस पे कोई बात करना चाहे तो सेट आप एक्सटेंड कर दें. हाँ मुझे जी, तो लगता है मैं बिल्कुल करना चाहूँगा. कि आपने सीधा सीधा ही मुझे यहूदी बना दिया अली भाई. लेकिन आई विल सर नॉट बी. मैंने इजराइली कहा था, यहूदी नहीं कहा मैंने. चले, आपने इजराइल यार बना दिया लेकिन मुझे. आप कोई भी कंफ्यूज तो हो सकता है. यू लुक लाइक ज़ेलेंस्की फ्रॉम यूक्रेन. चले, बट खैर बात यह है कि हम सब पैनलिस्ट जो उनसे है ना अपने इंटेलेक्ट को लेके वी आर बीइंग वेरी वेरी ग्रेशियस टुवर्ड्स इजराइल फॉर आई डू नॉट नो व्हाट रीजन. इजराइल को फायदा क्या हो सकता था, वी ऑल नो इट. आपको क्या लगता है कि लैंड ग्रैब करने की जो उनकी पुरानी आदत है वो तो हस्बे मामूल कर रहे थे अपना ये काम. आपको क्या लगता है अक्टूबर 7 को जो उनसे हमास ने अटैक किया है, बड़े अरसे तक हम लोग ये बोलते रहे हैं इट वाज अ टेररिस्ट अटैक, दे शुड नॉट हैव प्रॉम्प्टेड, उनको ऐसा करना नहीं था चाहिए जब वो कुछ कर नहीं सकते. जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है तो पता चलता है कि अटैक दरअसल अक्टूबर 7 को शुरू नहीं था हुआ.
अक्टूबर 6 को शुरू हुआ था, जब इजराइली योम कपूर को सेलिब्रेट कर रहे थे, और उनका सेलिब्रेट करने का तरीकेकार क्या था कि वेस्ट बैंक के अंदर उन लोगों ने बंदे भेज के दोबारा से बंदे मारना शुरू कर दिए, दोबारा से सेटलर्स इंक्रोचमेंट शुरू कर दी। जिस तरह हम ईद मनाते हैं, ईद के अंदर हम बकरे काटते हैं, तो वो योम कपूर मनाने के लिए बंदे काट रहे थे। हम भूल जाते हैं ना कि वो जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं वो रोज की है। और ये सब करके आपको क्या लगता है कि वो और इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे? उनका तो ये था कि यार हम लोग तो पता नहीं कितने अरसे से इन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, इंक्रोचमेंट करते जा रहे हैं, हमें किसने पूछना है। ये तो चलो उनकी मत मारी गई ना कि हमास ने जो सा उसके ऊपर फिर रिएक्ट किया। हम ये कह सकते हैं कि जी सिविलियंस मारे गए, बुरा हुआ, ये सिविलियंस नहीं थे मारे जाने चाहिए, सिर्फ उनके आर्म मिलिशियाज मारी जानी चाहिए थी। फिर हमें ये पता चलता है कि जो उनसे 1200 लोगों की कैजुअलिटीज वो बताते हैं, उसके अंदर काफी ज्यादा लोग तो जो उनसे हैं वो इजरायली अटैक हेलीकॉप्टर की जद में आ गए थे। तो फिर क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि हमास ने सिविलियंस मारे भी हैं कि नहीं, क्योंकि हमास ने जिस वक्त अपना ऑपरेटिव्स के रिस्पांस दिया, उन्होंने कहा भी हमने तो कोशिश की है कि हम सिविलियंस ना मारे, हमने कैप्चर करने की कोशिश की है, फॉर जो फिर हम लोगों ने देखा है कि उन लोगों ने हॉस्टेज एक्सचेंज किए हैं। इसराइल तो अपना यूजुअल काम कर रहा है सर। उनकी मत मारी गई थी कि भाई लोगों, इस दफा जो सा लोगों के पास कैमरे थोड़े ज्यादा थे, उनकी मत मारी गई थी कि इस दफा जरा शो ऑफ जो था उन्होंने जरा ग्रैंड किया, तो दुनिया के कैमरे जो से हैं थोड़े ज्यादा फोकस हो गए, इस वजह से सीज फायर हुआ सर। वरना आपको क्या लगता है ये अक्टूबर 7 को शुरू हुआ था? आपको क्या लगता है कि ये जो से उन्होंने बनाया हुआ कंसंट्रेशन कैंप गाजा को और हंटिंग ग्राउंड्स बनाई हुई है उन्होंने वेस्ट बैंक, वो अक्टूबर 7 को तो नहीं था अली भाई, वो बहुत अरसे से है। आपको इन चीजों की वीडियोस अक्टूबर 7 से बहुत पहले की रेडिली अवेलेबल मिलती हैं सर। इस वक्त सीज फायर हुआ है, तो मेजॉरिटी ऑफ द रीजन इज कि जिन लोगों के बंदे जो उनसे हैं वहां पे हमास ने जो उनसे प्रिजनर बनाए हुए थे, उन लोगों ने इसराइल के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया। जिस तरह यहाँ पे इमरान खान जो है वो धरना दे देता है ना, तो इसराइल के अंदर भी कुछ धरने धुरने हुए हैं। देवर प्रोटेस्ट्स इनसाइड इसराइल। Do you think that they were having some sort of mercy in their heart, or they were getting tired? It is nothing like that. The people whose families were captured by Hamas were building a political pressure, and in lieu of that pressure, they made a prisoners exchange. अब मुझे लगता है कि जो उनसे ऑन गोइंग बैटल ये जो एपिसोड है, इट इज हाईली अनलाइकली दैट दिस एपिसोड विल एंड विद दिस सीज फायर। मेरा ख्याल है कि हो जाए, और इट्स मैग्नीट्यूड विल बी रिड्यूस्ड। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये जंग बंद हो जाएगी, जो कि अक्टूबर 7 को शुरू हुई थी, तो इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा खराबियां हैं। अक्टूबर 7 को कुछ शुरू नहीं था हुआ, बहुत पहले से शुरू हुआ। थैंक यू। Like said, you did not say what is going to happen after this. Like, why has this temporary ceasefire come into existence? अभी तो बताया क्या जी, पॉलिटिकल प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं। आप पहला एस्पेक्ट पकड़ें, द इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड इन इसराइल by the people whose family members were imprisoned by Hamas. सेकंड चीज ये है कि उनका जो उनका रेगुलर तरीकेकार है, इट बैकफायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। How did it backfire? I would like Majority, the public perception of the Western world changed about them very to. अगर drastically. आप
अगर आप डेथ टोल एंड द डिस्ट्रक्शन इन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट एरिया देखें तो उस हिसाब से कैजुअलिटीज कहाँ पे ज़्यादा कैजुअलिटीज जो होती हैं वो फलस्तीनियों की ज़्यादा हैं, विदाउट डाउट। आप अगर हैं। ये अच्छा, कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन कहाँ पे ज़्यादा है? फलस्तीन में, हॉस्पिटल्स किसके डिस्ट्रॉय हुए, बिजली के पावर फलस्तीन के, स्टेशंस किनके डिस्ट्रॉय हुए? फलस्तीन के, तो इससे आप क्या, यानी कि ये तो हमें पता है, इससे आप अखज़ क्या करना चाह रहे हैं? आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि किस चीज़ के अंदर इसराइल को अकाउंटेबल होल्ड किया गया है, हाउ दे उनका प्रेजेंट। पब्लिक परसेप्शन बहुत विजिबली वेस्ट के अंदर, वेस्ट की पब्लिक के अंदर चेंज हुआ। गवर्नमेंट्स वी ऑल नो, Is that why the अभी अभी वेस्ट के अंदर एक ही कंट्री के अंदर रिसेंट टाइम्स में इलेक्शंस हुए हैं? Is that why Geert Wilders is about to become the prime minister in Netherlands? क्योंकि परसेप्शन चेंज हो गया, या इसकी क्या वजह है कि लपेन जो है दे आर बेसिकली अबाउट टू ओवररन मैक्रोन एंड दे आर गेनिंग more support than they ever had, इस वजह से हो गया है? या जर्मनी के अंदर जो फार राइट आउटफिट्स थे उनकी एक्टिविज्म ज़्यादा तेज हो गई है और आम पब्लिक जो है वो उनको वोट्स देने लग गई है? या शायद जी अगर तो इसका आपको, परसेप्शन यहाँ पे है कि एवर सिंस दोज कमेंट्स हैव बीन पास्ड ट्रम्प का वोट गेन ज़्यादा होना शुरू हो गया है। Is this also an indicator कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट यूके के अंदर इतनी डाउन जा रही थी ये परसेप्शन पोल्स, और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अ सडन उनके अंदर उन्होंने भी इंक्रीज ढूंढा है, शायद उनकी जी परसेप्शन दिस चेंज इज, होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स जिनकी बेस पे आप ये कह रहे हैं कि इजराइल लॉस्ट इट्स परसेप्शन? ना 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 शादी, अगर आपको ये लगता है कि इसराइल फ़लस्तीन की वजह से बाकी किसी भी मुल्क की बाकी सारी पॉलिटिक्स जो सी हैं, वो उस किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स इसराइल और फ़लस्तीन के राउंड गर्दिश नहीं करती हैं। अ पर्सन कैन बी अ फायर राइट सेड सपोर्टर। सेड इन सारी कंट्रीज के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे पिछले 6 हफ्ते में, इन जगहों के ऊपर इन चीज़ों के अलावा कोई बात ही नहीं हुई। फॉर majority of these Western countries, at the end of the day, the Muslim thing or anything associated to the Muslim or the Jewish thing is right the center of their politics. And within that entire scenario, अभी आप गियर्ट बिल्डर्स की स्पीचेस सुने, उस सारी चीज़ के दौरान उसने दो चीज़ों पे फोकस किया, एक इमिग्रेशन, दूसरा पैलेस्टाइन, इसराइल, मुस्लिम। अगर आप ट्रंप की बात सुने, इसराइल, पैलेस्टाइन, मुस्लिम। अगर आप लपेन की बात सुने, इसराइल, पैलेस्टाइन, मुस्लिम। फार राइट के एक्टिविस्ट को आप यूके के अंदर देखें, आई नेम अ फ्यू, केटी हॉपकिंस एंड व्हाट नॉट, उन्हें खाली गियर्ट विल्डर्स की चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, दे इवन try to humanize whatever the Israeli IDF has been carrying out. वो जो आपको 100, 200, 300,000 लोग सड़क के ऊपर नजर आते हैं, उनको उल्टा बैन किया गया इन कंट्रीज के अंदर। बहुत सारे अरेस्ट हुए इन कंट्रीज के अंदर, और उनको भी किस चीज को कह के डिसमिस कर दिया कि एट अ टाइम, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि एट अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, at a time when we have our stuff and our economics and inflation so high, how and why are you obstructing our daily lives on an issue which you have nothing, you know nothing about? आप ऐसे टाइम के ऊपर एंटी सेमेटिज्म क्रिएट कर रहे हैं। एंटी सेमेटिज्म के चक्कर के अंदर किसी ने इस्लामोफोबिया की तो बात नहीं की कि इस्लामोफोबिया हो रहा है या दूसरी चीज़ें हो रही हैं। इंडिया, जिसके जयशंकर ने अगले अगले दिन जब ये कॉन्फ्लिक्ट बिगिन किया, हाइट पकड़ा, पीक किया, पहले तो पैलेस्टाइन की तरफ कहा कि वी आर स्टिल सपोर्टिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी।
Do you know how many people have been arrested just alone in India? तो इनकी शाह जी, ये तो वो वाली बातें हैं जो नहीं नहीं फैक्चुअली नहीं आपको शाह जी, नजर आ रही मैं हैं। इसका आपको एक इसका सेकंड ना मेरी बात कंप्लीट होने दो। डिड आई डिस्टरप्ट यू व्हेन यू वर स्पीकिंग? हम्म, आई डोंट थिंक यू शुड आइदर। फिर बात खत्म नहीं होती उस तरह। डोंट स्पीक ओवर इट, आई लेट यू स्पीक व्हेन आई एम डन। बात सिंपल सी ये है कि जब इन चीज़ों के रिजल्टेंट आते हैं, उन चीज़ों पे आते हैं, आप इन कंट्रीज़ के फैक्टरिंग इनको देखें। इवन अ कंट्री लाइक अर्जेंटीना, जब उनका प्रेसिडेंट इलेक्ट, जो बाय द वे डॉग से बात करता है टू गेट एडवाइस, quite literally, I think both in animal and human form. जब जब उसने स्टेटमेंट्स दी वो भी बहुत प्रो इजराइली थी, एंड ही गॉट अ अप्रोर फॉर इट, ही डिड नॉट गेट कंडेम्ड फॉर इट, उसको चेयरिंग के अलावा कुछ मिला नहीं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सारी बातें जो मैंने आपके आगे रखी, प्रो इजराइली एंटी सेमेटिक होने के इल्ज़ाम लगे, लिंडा सारसोर जैसे एक्टिविस्ट को दो प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया यूएस के अंदर, पब्लिक स्पीकिंग के एयरिंग नहीं मिली, that she's anti-Semitic when that woman has been carrying out charities for Jews in the last 6 or 7 years. कोई मीडिया कवरेज नहीं मिली। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये किन बेसिस पे कह रहे हो कि इसराइल को एक्सपोज कर दिया गया? क्या इसराइल के किसी जगह से पैसे कम कर दिए गए? अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, क्या उनको बैन कर दिया गया? क्या जो इलेक्शंस थे उनके अंदर कोई चेंजेस आई इन जगहों पे? पॉलिटिकल जहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे उन पे क्या हुआ? आप आपका क्लेम जो है वो किन चीज़ों पे बेस करता है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन। शाह जी, आप जो से सारा सिनेरियो बना रहे हैं ना कि जी गवर्नमेंट्स ने ऐसा नहीं किया और इलेक्शंस जो से वो उसको शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान, इसकी अगर हम एग्जांपल देते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ना एक पॉपुलर लीडर रिसेंट टाइम्स में उभरा है, इमरान खान के नाम से। तो इस वक्त सर जी वो जेल में है। ही इज अ पॉपुलिस्ट लीडर, ही इज being proven by majority of the people. We all know that. The polls show that. He is sitting behind bars. अगर आपको लगता है कि जो सी गवर्नमेंट से द पीपल इन पावर दे आर in some way, shape, or form directly selected by the public perception, we all know the world is not working like that. अगर आप ये कह रहे हैं कि लोगों का परसेप्शन कुछ बदला ही नहीं है, वी हैव द सोशल मीडिया फिल्ड with the people who are non-Muslims and they are talking in favor of Palestine. अगर यहाँ पे आप सॉरी ये सॉरी शाह जी, सिट साहब, मैं इस हम्म, पैनल का मजीद हिस्सा नहीं बन सकता जहां आप लोगों ने इमरान खान की आज़ादी को गजा की आज़ादी से कंपेयर कर दिया है। मुझे इजाज़त है, मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। अली भाई मैंने कोई कंपैरिजन तो किया ही नहीं है, आप बिला वजह पे इमरान खान की आज़ादी का गजा की आज़ादी से कुछ ताल्लुक नहीं है। मैं उनको बताना ये चाह रहा था कि पब्लिक ओपिनियन जो सी है वो पॉलिटिक्स जो सी है इस लेवल पे डिक्टेट नहीं करती है, आपको प्रेशर बिल्डअप करना पड़ता है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट की जा सकती है कि अभी भी वेस्ट के अंदर जो सी है मेजॉरिटी जो सी है वो प्रो इजराइल और एंटी पैलेस्टाइन है, बट टू अज्यूम के डेंट नहीं पड़ा, but to assume that effects have not happened, the effects are visible on the interwebs, visible with the public. आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि और ज्यादा होने चाहिए, वो आप ये कह सकते हैं कि भाई इलेक्शंस के अंदर उनको रिफ्लेक्ट उस लेवल पे नहीं हुआ जिसके ऊपर होना चाहिए था। ऐसे क्यों होना चाहिए था? एनीथिंग मोर, जिस वक्त आपके पास जीरो हो, जीरो से वन भी जो सा ज्यादा होता है, और वो नजर आया है। आप अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि
इस टाइम पे जोन सा है सीज फायर क्यों हुआ है, एक तो इसराइल के इंटरनल इफेक्ट जो सा मैंने आपको बताया है, दूसरा कई बीच में मुल्क पड़े हैं, उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड किया है, उन्होंने अपने बंदे वापस तो करवाने ही थे। और नॉर्थ गाजा जोन से आप उसके एरियल मैप्स देखें, तबाह तो कर दिया सारा कुछ, अब बचा तो कुछ है नहीं है। और जो सा क्या वहां पे उन्होंने और कितनी की बमबारी करनी है, आप एरियल मैप्स चेक कर लें, जो उन्होंने काम करना था वो खत्म कर लिया, अब उन्होंने समेटना, अंदर भी तो जाना है ना, इंक्रोचमेंट भी तो करनी है ना भाई। जिस वक्त वो आर्टिलरी बराज कर रहे होंगे उस वक्त तो इंक्रोचमेंट नहीं ना कर सकते हैं, जब इंक्रोचमेंट का टाइम आएगा तो फिर जाहिर सी बात उन्होंने साफ सफाई करनी है। इट्स नॉट दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त क्यों सीज फायर हुआ है, जगह लेवल हो चुकी है सर, हल उन्होंने फेर दिया, अब अपने गंदे बीज वहां पे डालने हैं उन्होंने। But said, I think it's a bit early to say कि internationally what's the situation of support in terms of Israel and Palestine, because the policy has been very clear from day one, West की, and it would remain unchanged in my opinion. अगर change होगी, we would see that in the coming years, I would say, not in even in months, क्योंकि policy मुझे change होती इतनी आराम से नजर नहीं आ रही, जो ग्लोबल साउथ है या ग्लोबल नॉर्थ है, क्योंकि साउथ में जो गल्फ की पॉलिसी है वो भी बहुत क्लियर है ऑन ऑन दिस इशू। लेट्स गो टू आदित्य। आदित्य, आप अपना पॉइंट रखें प्लीज। हाँ, ये दोनों सर दोनों कहाँ चले गए, शाह और अली भाई? आई थिंक शाह का लोड शेडिंग का इशू है, ही वुड बी कमिंग बैक, आई थिंक ही इज बैक, तो प्लीज गो अहेड, आप अपना पॉइंट रखें। अली जी, भाई हैड ऑल राइट। तो जी पहले पहले शाह ने जो है एक पॉइंट उठाया इंडिया पे, वो कहते हैं कि वोकली जो है, ओपनली जो है इसराइल को सपोर्ट दिया जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको है ना इंडिया की साइकी समझाता हूँ, मतलब ना इंडिया किस तरीके से इस चीज के बारे में सोचता है। और मे बी जो है आपको ये चीज समझ नहीं आएगी क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाएंगे इस चीज से, इस साइकी से। तो पर फिर भी आई ट्राई टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। देखिए, जो भी करंट सिटिंग गवर्नमेंट जो है ना, जो हमारे देश के अंदर बीजेपी जो गवर्नमेंट है, उसका 98% वोट बैंक जो है, 98% वो नॉन मुस्लिम वोट बैंक है। 98% जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। गिने चुने बीजेपी को जो है ना मुस्लिम्स वोट करते हैं। तो वो जो गिने चुने वोट आते हैं, आई डोंट थिंक जो इतना सुन के भी, और मतलब जितने अटैक्स वो मुस्लिम्स पे करते हैं, कहते हैं ना दे आर द ऑड वंस आउट, वो अभी भी वो वोट अगर कर रहे हैं तो कल को भी करेंगे। आई डोंट थिंक पैलेस्तीन की वजह से वो 2% वोट बैंक उनका जाने वाला है। दूसरी बात, रही बात हिंदूज पे, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, या हिंदूज मान लो या बाकी सारे जैन वगैरह ये रिलीजन्स मान लीजिए आप, जो नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं ना, आप मानेंगे नहीं, 98% हिंदूज को पता भी नहीं है कि पैलेस्टाइन है कहाँ पे, इसराइल है कहाँ पे। बिना मजाक के बता रहा हूँ, मुझे खुद को 7 साल पहले तक पता नहीं था। मुझे पता था ये इसराइली इंडिया में आता है, मैंने इसराइली देखा था, मुझे ये तक नहीं पता था पैलेस्टाइन नाम की कोई चीज भी है। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे 7 साल 8 साल पहले तक पता नहीं था पैलेस्टाइन नाम की कोई चीज भी है। ये इसराइली से हिमाचलों वगैरह में मिलते थे, जो इंडिया में जो है ये ट्रैवलर्स आते हैं, ये मिलते थे, पर मुझे पता नहीं था पैलेस्टाइन नाम का कोई इशू भी है, एग्जिस्ट करता है। और ये तो मैं हूँ जो कि एक कहता ना एक अच्छे स्कूल की एजुकेशन ली हुई है, जिसने थोड़ा जो सोशली अवेयर है। मेजॉरिटी ऑफ जो हिंदूज हैं, दे डोंट इवन नो कि पैलेस्टाइन जैसी कोई इशू एग्जिस्ट करता है, आज तक उन्हें नहीं पता है। और जब जब कोई कहता ना कि वहां पे जो है इस पैलेस्टाइन में लोग मारे जा रहे हैं, तो एक इंडियन को उसके बारे में उतना ही फर्क पड़ता है जितना जब सऊदी अरेबिया जब है यमन पे बम फोड़ती है और वहां पे हजारों लोग मर जाते हैं ना, या फिर आपके नाइजीरिया के अंदर जो है कोई आतंकवादी हमला करके जो है 2000 बच्चे मार दिए, कहीं 400 लोग मार दिए, जितना उनको उतना पता चलता है, उतना फर्क पड़ता है।
बेसिकली कहने की बात ये है कि इंडिया की जो मेजोरिटी रिलीजन है, they have zero knowledge about it and they have zero interest in it. The only reason Indian Muslims somewhat care about this issue is because of their relation to the religion. ये तो है ग्राउंड रियलिटी, ठीक है। ये जितना आपको ग्लोबली अभी जो दिख रहा है इंटरेस्ट इसके अंदर ना, तो इंडिया के अंदर तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक फैक्ट है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ इंडिया डोंट केयर। द ओनली फ्यू पीपल who are very vocal on the internet that you see on Twitter all around, who are very vocal supporter of Israel, are those bigoted Hindu nationalists जो कि मुसलमानों से और इस्लाम से दोनों से नफरत करते हैं। तो वो नेचुरली जो है दे सपोर्ट इजराइल एंड दे हेट पैलेस्टाइन, राइट। सो दैट्स देयर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उन्हें भी जीरो पता है कि हिस्ट्री क्या है इस केस की, दे हैव जीरो नॉलेज। उन्हें सिर्फ एक चीज पता है कि मुस्लिम बैड सो पैलेस्टाइन बैड, ठीक है। ये है फैक्ट, ग्राउंड रियलिटी, जो हिंदू नेशनलिस्ट का जो वी स्टैंड विद इजराइल का सपोर्ट है, वो ना जानते हैं और ना वो जानना चाहते हैं, ठीक है। और एक इशू शाह ने खड़ा किया जिसके अंदर बात उठी कि ये जो यूरोप के अंदर जो राइट विंग नेशनलिज्म जो है और वो जो है बिगेटरी वहां से आ रही है जो अगेंस्ट मुस्लिम्स। देखिए, आई थिंक दैट्स अ सेपरेट इशू which is that rampant and sudden influx of a lot of migrants into the Europe. I think that is the biggest reason why you see a lot of populist right-wing leaders coming to power, because I think they had for a very long time uncontrolled, unchecked immigration, mostly of the people who were not very acclimatized to their culture, who don't understand their culture and they don't even care about it. They don't integrate very well, and it takes time. Probably it takes 1 to 2 generation to understand and कहते हैं ना उस कल्चर का हिस्सा बनने में 102 जनरेशन लगते हैं। और जब आपका 70 to 80% जो मुस्लिम इमिग्रेशन है वो है ही 1 जनरेशन पुराना, तो हर किसी को यही लगता है कि यार दिस कल्चर इज वेरी नॉन अलाइन टू आवर कल्चर। तो आई थिंक वो एक सेकंड पॉइंट आपका यूरोप में जो राइट विंग नेशनलिज्म जो भर रहा है इस टाइम, उसका एक रीजन ये है मेरे अकॉर्डिंग। और किसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर बढ़ रहे हैं और जो बाइडेन जो है उसने जो अभी हरकतें की हैं उसकी वजह से लोग सपोर्ट नहीं कर रहे उसको। तो भाई साहब उनको जो है, अगर उन्हें पता होना चाहिए कि अमेरिका में एक इसराइल की लॉबिंग ग्रुप है एपैक नाम से, AIPAC नाम से, एपैक नाम से लॉबिंग ग्रुप है। वो हर साल जो है अपने कॉन्क्लेव्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अभी शायद उनका फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, आई थिंक लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में उनका शायद वो था इवेंट था। और इस इवेंट में हर साल अमेरिका के बिगेस्ट जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जाते हैं। इट्स यूजुअली द रिपब्लिकन्स हु गो देयर। अभी 3 हफ्ते पहले वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। अगर किसी को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा प्रो जो है कहता ना इक्वालिटी और रैशनैलिटी पे खड़ा होगा, तो प्लीज एक बार जाके आप सुने। वहां पे होड़ लगी हुई थी आपके जितने टॉप जो रिपब्लिकन लीडर्स हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आता है या ये रामास्वामी जो है, और एक थर्ड फ्लोरिडा वाला जो बंदा है, क्या नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा। फ्लोरिडा वाला कौन है फरखान भाई? जो I have no clue. द थर्ड मोस्ट पॉपुलर जो रिपब्लिकन रनिंग है, वहां बेसिकली होड़ लगी हुई थी इस आर्ग्यूमेंट पे कि व्हाई दे थिंक Joe Biden is not giving his 100% support to the Israeli issue, and how they will make sure that Israel wins this war, and they will give their 200% effort to make sure that Israel wins this war. And what would have they done differently to support Israel more than what what do you call it, the Democrats are doing? तो वहां पे लड़ाई इस चीज पे छिड़ी हुई है कि हम और ज्यादा सपोर्ट करते हैं इसराइल को, कम नहीं करने की बात हो रही कहीं भी। तो अगर किसी को लगता है कि ये डेमोक्रेट जो है इन्होंने गलत मिस हैंडल किया है, रिपब्लिकन जो है इससे भी डबल सपोर्ट करते हैं। वो 50,000 लोगों के मरने तक तो चू भी नहीं बोलते, इन्होंने फिर भी 15,000 पे जो है कम से कम ये तो बोला है कि यार कुछ कर लो, थोड़ा सा देख लो।
और ये आई थिंक ये जो इशू है, ये अगर किसी को लगता है कि किसी की आवाज उठाने से ही एक बार रुका है, तो आई थिंक ये सब की सब बातें, आई थिंक दिस इज, आई डोंट एग्री विद एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग. Yes, Aditya, I have a question. Like you explained the general sentiment of the people in India, or why it is pro-Israel in a way, कि right-wing narrative है. That that was probably your conclusion. But मुझे थोड़ा सा जो जो change in stance आपकी government का रहा है, क्योंकि they have been supporter of two states in the region and in the conflict. But जो अभी recent एक उनका change आया है in from condemning the actions and then going a bit pro-Israel. वो आपको क्या लगता है क्यों आया है? You coming from India, I think it would be most appropriate कि आप इसे आंसर करें. इस स्टैंस का बहुत एक इजी एक्सप्लेनेशन है, और हमारी कांग्रेस का भी सेम स्टैंस है, उसमें कोई हमारी भी ऑपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस के जो वोटर्स जो हिंदूज हैं, इवन द कांग्रेस सपोर्टर्स ऑफ द हिंदू साइड ऑफ द गवर्नमेंट also don't care about the Palestine Israel issue, to be very honest with you. It's not even an issue in majority of the Hindu, like, understanding of the world. जैसे कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में लोगों का था ना कि nobody cares, यार लोगों की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, we don't care. It's the same attitude in Palestine and Israel issue. It's not our problem, it's somebody else's problem and we don't care. Is that kind of attitude in India. ठीक है, ऑपरेशन तो यूक्रेन में भी हो रहा है. इट्स नॉट द वॉर दैट यूक्रेनियंस कॉल्ड, राइट, बट स्टिल दे गॉट अटैक्ड. Most of the Indians had the same argument. It's not our war. We have nothing to do with it. ना हमने कभी जो है कोई हॉलोकॉस्ट किया, ना हमने कभी कोई इंपीरियलिज्म किया. तो डोंट लाइक ट्राई टू इवन पुट एनी, ना हमारा कोई कनेक्शन है जूस के साथ हिस्टोरिकली, ना हमारी कोई बिब्लिकल थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं इस केस को लेके. तो इट्स समथिंग दैट इज नॉट इवन अ केस और इशू इन इंडिया. और रही बात दूसरी, आपने क्या पॉइंट था फुरकान भाई? Yeah, it was mostly about the stance which you have explained, the change in stance, basically. So the second point is there is no change in stance. It's the Mm-hmm. stance is the same since last 70 years. India supports two-state solution, which it still does. India still doesn't recognize Hamas as a terrorist group, by the way, which most of the entire West does, and a lot of Eastern countries also consider Hamas a terrorist organization, which India doesn't consider a terrorist organization. The only thing that India condemned was the terrorist attack that happened on 7th of October. That's all. There is nothing more. India has, like, being very vocal about that support, but it's very simple stance that India's sitting government holds, and so it's exactly what even our opposition Congress repeated. Okay, I think Ali Bhai had a question for Aditya. Ali Bhai, आप इधर हैं तो please go ahead. जी जी शुक्रिया डॉक्टर साहब. Aditya, I have listened to Aditya quite many times. We have shared this subject like before, way before 7 October, like many for last couple of years. Aditya was on our panel and he has enlightened our audience in several rooms. I remember, and one of my most reoccurring question to Aditya was always this, like, where is what Muslims of India are getting on the Palestine side from the Indian government, right? And then he was very always to the point. देखिए द्वितीय साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है. जब आप ये सारी बातें कर रहे थे तो मैं आपके साथ रिस्पेक्टफुली मुझे ज़्यादा देर डिसएग्री करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी पैनल पे ही लोग आपके साथ थे. तो कह लें कि मैं मोस्ट ऑफ द पैनल, सारी पैनल ने नहीं बात की, मोस्ट ऑफ द पैनल से डिसएग्री करता हूँ अगर उनकी ये सोच है तो. और वो ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में, और जैसे आपको भी 7 साल पहले फ़लस्तीन का पता नहीं था, और इंडिया में nobody wants to give anything अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन यूक्रेन और फ़लस्तीन और वगैरह, वो अपने उसमें मस्त हैं.
ये जो दुनिया इस टाइम चल रही है हाईली सुपर कनेक्टेड दुनिया है, और इस सुपर कनेक्टेड दुनिया में अगर अपने ही पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वो सोफे पे थोड़ा सा टेढ़ा होके टाई को लंबी करके ये कह रहा है कि आई वांट टू लेट यूरोप अंडरस्टैंड कि यूरोप्स प्रॉब्लम इज नॉट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, ओके, एंड आई विल बाय माय गैस फ्रॉम वेयर एवर द चीपेस्ट गैस आई कैन गेट, ओके। तो रिगार्डलेस आप उसके साथ हो या ना हो, आपको ये ना पता हो कि इसराइल कहाँ है फलस्तीन कहाँ है, लेकिन वो गैस जो आपने सस्ती रशिया से ली है, और इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रेजेंट इसराइल और फलस्तीन का चल रहा है, इसमें जो आपके पेट्रोल जो आपकी मोटरसाइकिलों में पड़ता है, लड़के जो घूमने फिरने याशी करने जाते हैं, वो सारा असर पड़ता है और बच्चे बच्चे को पता लगता है। बल्कि मैं डॉक्टर साहब के साथ भी थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट पेश करना चाह रहा हूँ, वो ये कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये एज इट इज रूटीन की एक्सरसाइज हो रही है और इसका आउटपुट रूटीन। आज तक इस तरह के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज तक इस तरह की बेबाकी जिसे कह लें, बेबाकी वो क्या आपका वो गाना था एक आदित्य साहब आपकी फिल्म का, जिसमें मतलब लाबाली, ठीक है, लाबाली भी वर्ड यूज होता है, लाबाली हो जाए, बेबाक जिस तरह लोग हो गए हैं कि अब खुल के लोग आके यूरोप में, कनाडा में, दूसरे फलस्तीन में, सॉरी वेस्ट में, जनरल नॉर्थ में, सारे लोग खुल के फलस्तीन के इसराइल के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। इतनी अडासिटी आम अक्रॉस द बोर्ड आम लोगों में नहीं थी। एंटी सेमिटिक बात करते हुए अभी रिसेंटली हमारी कन्वर्सेशन एक हमारे जर्मन स्पीकर आए हुए थे, उनसे डायरेक्ट हो रही थी। वो कह रहे हैं कि बाय लॉ मैं कितनी बातें हैं वो जो नहीं पे कर सकता, आपके पैनल के ऊपर नहीं पेश कर सकता, मुझे लीगली प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आज जितनी बेबाकी आ चुकी है वेस्ट में, लोग खुल के फलस्तीन के झंडे और वो पोस्टर उतार रहे हैं और फलस्तीन घूम रहे हैं, ये तो पहले कभी नहीं हमने देखा। पहले तो हमने डर देखा है कि नहीं जी वो फलानी वो फोन हमारा सुन सकता है, हमारी फलानी रैकी हो सकती है, सोशल मीडिया पे ये कर दिया वो कर दिया। आई वुड से टू कंक्लूड माई पॉइंट, 2023 नवंबर में जो माह हम बातें कर सकती इसराइल के खिलाफ वेस्ट में बह के, ये आज से 2 महीने पहले पॉसिबल ही नहीं था। इतना बड़ा चेंज आया है। आई रेस्ट माई कन्वर्सेशन हेयर। तो हाँ, मैं आदित्य तो आप मैं 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 यहाँ पे पांच कुछ पांच शब्द, सिर्फ 5 वर्ड में इस पे बोल देता हूँ फिर अली भाई, कि यू आर रीडिंग टू मच इनटू इट, एक फ्रेज है यार इंग्लिश एक का। सेकेंड, आई वांट टू Aditya, I want to point something out to you. First of all, though, when you said that in India nobody cares about a Palestine and Israeli issue, that's not true. Honestly speaking, since 1947, since Jawaharlal Nehru, you guys had a relationship with you guys supported the Palestine cause because you wanted to go against the two nation theory, okay? Jawaharlal Nehru wanted to make a point that we can also support Muslims and we can also live together, okay? सेकेंडली और इसराइल के साथ इंडिया के ताल्लुकात तब ठीक हुए जब यूएस ने इसराइल पे यूएस ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाए ओवर दैट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो न्यूक्लियर का वो किया था, डिस्प्ले किया था। और उस पे फिर जब सैंक्शन भंगने पे इसराइल ने ऑफर की थी इंडिया को कि हम आपको weapons देते हैं। Since then, India have tilted toward Israel, but it's also saying that the nobody cares about Israel. Let me just point something out to you. It's that I think it was Indian news, right? Recently, जब ये Hamas attack हुआ था, it was Indian news which was covering it like very in a very biased way. It was very pro-Israel, and also it's decided that somehow Yahuds are somehow related to one of the Rajput clans. Something I don't something started from Y, यादव and this क्लैन। take out they started to take out relationship of how Indians are related to Israeli, right? Indian are related to Jews are one of them, right? So saying Indians don't care about the Israel-Palestine issue because they're not Abrahamic religions, they have tried their level best to make Israeli Jews look like they're from some dharmic background, which they're not, and make it look like
it's somehow related to that. And let me point something out to you. When the masses watch these news, they actually buy it. You're educated, I'm educated, there are other educated Indian who will not buy it, who will laugh at it, okay? But a lot of those uneducated people, they buy such things, okay? And automatically they start supporting Israel, right? Agar technically देखा जाए तो Indians have very weird perception about Pakistan as well, but they have those perceptions. That doesn't stop them from having those perceptions. So saying that Indian don't care about the Israel and Palestine issue, that I think that is completely wrong. And secondly, जहाँ तक ये वाली बात है कि डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन्स, वी ऑल नो दैट अमेरिका की 100 साल की वो होती है, मैंडेट होती है, ठीक है? नो मैटर हु द प्रेसिडेंट इज, उनका जो मैंडेट होता है, जो किसको इन लोगों ने सपोर्ट करना है, क्या करना है, वो पहले से मतलब बैक साइड से आता है, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद वो सामने जैंगोइज्म कर लेंगे, लेकिन इट रियली हैज नथिंग टू डू विद क्या कहते हैं उसे, हाउ दे आर गोइंग टू डील विद द रिलेशनशिप. लाइक किसी को अगर ये लगता है कि जो बाइडन इज डूइंग इट ऑल ऑन हिज ओन, दैट्स नॉट ट्रू. वो उसको सारा स्क्रिप्टेड मिला होता है. अगर ये डोनाल्ड ट्रंप ही होता तो उसको भी यही चीज स्क्रिप्टेड मिलती. शायद वो उसका स्टाइल ज्यादा सिवियर होता. जो बाइडन थोड़ा सा मम्बलिंग करता है, यू डोंट रियली गेट व्हाट ही इज सेइंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट it was going to be the same thing. It was not going to be different. I don't think anyone is contesting that fact कि यूएस से कोई ये उम्मीद करता है, या वो ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसने ये सारे इजराइल और पैलेस्टाइन वाली सिचुएशन शुरू की. But I think people expect other people, I mean, general masses to know what is actually happening there. That's all I had to say. Can I respond to that? So देखें, इंडिया है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब एक बहुत बड़ा जो सेक्शन इंडिया का, इट्स नॉट वेरी लाइक यू नो, बहुत ही ज़्यादा रीजनिंग के साथ यहाँ पे एजुकेशन बहुत एक मेजॉरिटी एक बहुत बड़े चंक को नहीं मिली है. तो ये जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं ना, ये वो सुदर्शन टीवी जिसकी बात कर रहे हो, ये इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब विदाउट अर्नब गोस्वामी मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स जो है वो प्रोपेगेंडा चैनल है. वो उन्हें उनका जो रिसर्च भी अगर ये होगा ना कि ये दो वर्ड्स सिमिलर साउंड करते हैं, ये वही चैनल है जो ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे ये ऑस्ट्रेलिया है या ऑस्ट्रेलिया है, ये असुरों की जगह है. समझ रहे हो आप? ये उस लेवल का प्रोपेगेंडा है कि जो सिर्फ वर्ड्स जो है सिमिलर साउंडिंग होते हैं कोई भी एक संस्कृत टर्म से, तो उसकी जो है ना हिस्ट्री मिला के आपको कहेंगे कि ये देखो ये हमारी जमीन है. ये वही लोग हैं जो कहेंगे कि ये चैनल पे जो खबरें चलती थी कि यूएफओ आई और यूएफओ जो है वो गाय को बिठा के ले गए, ये आपको अगर मैं कंपेयर करूं तो ये लाल टोपी टाइप जो प्रोपेगेंडा होता है उस लेवल का प्रोपेगेंडा है. और ये सिर्फ जो है, देखें, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो इंडियन स्टेट है जो करंटली अभी बीजेपी रूल करता है, दे वांट टू पोर्ट्रे इंडिया एज अ फ्रेंड ऑफ इजराइल. ठीक है, और जितना भी क्रिएट कर पाए वो तो दिल से चाहते हैं कि इंडिया में एक प्रो इजराइल सेंटिमेंट क्रिएट हो. और ये न्यूज़ जो है, और इसको इतना ज़्यादा कवर किया गया, अगर नहीं भी कवर किया जाता किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था. पर जैसे एक मूवी के अंदर दिखाता ना, एक्शन होता है, ड्रामा होता है, उसको पूरे एक मूवी की तरह इस सारी चीज़ को एक प्रो इजराइल स्टैंड से जो है, हमारे आपको पता नहीं कितने टीवी चैनल्स के एंकर्स जो हैं वो इजराइल गए कि प्रो इजराइल साइड से जो है सारी वॉर को कवर करने के लिए. तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन स्टेट जो है वो प्रो इजराइल है, बट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को अगर नहीं भी अगर वो कवर करते तो फर्क नहीं पड़ना था. मेरा कहने का ये मतलब है, दे डोंट फील इमोशनली अबाउट इट. अगर हाँ किसी ने कह दिया कि वो मुसलमान है, उन्होंने जो है यहूदी मारे, तो हाँ अगर वो कहेंगे यार ये देखो यहूदी मारे, यहूदी मतलब अच्छे लोग हैं, मुसलमान तो है ही बुरे. समझ रहे हो आप? तो ये क्रिएट करने को आप वो चीज क्रिएट कर सकते हो जो अभी चीज क्रिएट हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये नहीं भी बताते तो कोई जानबूझ के इंटरनेट पे जाके ढूंढता है इसके बारे में. शायद वो जो कुछ वेरी राइट विंग जो चैनल्स हैं वो फिर भी जाके मेहनत करते हैं, बट जो एक आम इंसान है वो अगर आप उसे यूएफओ गाय उठा के लेके दिखा रहे होते तो वो भी शौक से देखता. तो ये मेरा समझाने का मतलब है इस पर. जी महम, मुझे एक लाइन पूछनी है आदित्य से, आप इजाजत दें तो. अली भाई, पहले मैं एक चीज का रिस्पॉन्ड कर दूं जो आपने डिसएग्री किया था मेरे से ऑन द प्रोटेस्ट्स एंड हाउ वोकल
the protests have been. मेरा ख्याल है कि we have similar trends on various issues. Uh, but ये जो क्रॉस सेक्शनल प्रोटेस्ट हो रहे हैं या आई वुड से सेंटिमेंट्स पोर आउट हो रहे हैं इन फेवर ऑफ पैलेस्टीन जिसमें एंटीसेमाइट सेंटिमेंट भी आ रहा है आई वुड से दे नेवर ट्रांसलेट इनटू लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड policy changes. I have never seen that. If it happens, it would be a new thing for me. And I don't foresee any changes in international relations or इस इन सारे प्रोटेस्ट का कोई भी चीज ट्रांसलेट होगी जो कि ऑन द लाइव्स ऑफ पैलेस्टीनियंस इन अ फेवरेबल वे इम्पैक्ट करेगी यस ह्यूमैनिटेरियन एड खुल गई है ब्लॉकेजेस उठा दिए गए हैं बाय इसराइल बट वो भी कितने प्रेशर के बाद ये सीज फायर हुई है जिसकी वजह से ये एक स्टेप लेना पड़ा है इसराइल को ठीक है बट ये मुझे लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा दिस इज अ वन टाइम थिंग ये खत्म होगा हम चले जाएंगे अपना काम करने लग जाएंगे सारे लाइफ में बिजी हो जाएंगे इट्स नॉट अ सस्टेनेबल थिंग प्रोटेस्ट प्रोबेबली क्विक फिक्स के मुझे लिए तो प्रेशर रेस मुझे करने के लिए यस बट नॉट इन द लॉन्ग रन जी सर जी मुझे तो इसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है दैट वी शुड रेफर टू दिस एज अ सीज फायर कौन सी सीज फायर 4 दिन के लिए होती है तो लॉन्ग टर्म की तो बात आप छोड़ें मैं तो अगले हफ्ते की बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या होगा इसके बाद बिकॉज एज फार एज आई एम कंसर्न यहाँ पे बहुत लोग बड़ी चीज़ें कह रहे हैं और मैं यही एनालाइज करना चाह रहा था पहले भी जब सिड ने वो एग्जांपल दी फिर आदित्य सेड समथिंग ऑन द लाइन्स कि ये तो इमिग्रेशन की वजह से फार राइट जो है वो अमर्ज कर रही है और फिर अली भाई ने भी ये एक बात की बड़ी इंटरेस्टिंग कि ये जो प्रोटेस्ट हैं इन प्रोटेस्ट की बेस के ऊपर पता लग गया इसराइल दंगा हो गया आज आम बेधड़क लोग बात करते हैं I'd like to point out कि अक्सर औकात ना लोग टीवी चैनल्स भी वही देखते हैं जहाँ पे या उन्हें कोई कंट्रोवर्सी नज़र आती है या जहाँ पे उनके एक पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं आपका सोशल मीडिया उस तरीके से नहीं है जिस तरह आज से 10 साल पहले था even the social media finds the kind of videos you enjoy and spend time watching कि वो उसी तरह के अकाउंट्स और उन्हीं चीज़ों को आपके सामने लेके आता है तो I think it's creating those echo bubbles not even echo chambers where people are almost connecting to people who agree with them एक प्रो पैलेस्टीनियन को ये नज़र आएगा कि हर बंदा पूरी दुनिया प्रो पैलेस्टीनियन है और एक प्रो इजराइली को नज़र आएगा कि भाईजान पूरी दुनिया के अंदर ना प्रो इजराइली लोग हैं if you want to actually find out what the landscape is both online and offline तो आपको सर्च करके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो वेरियस कंट्रीज और नैरेटिव्स को सपोर्ट करेंगे उन पे जाना पड़ेगा एंड टिल फॉर एग्जांपल एक इशू पे डाल देना कि अनकंट्रोल्ड किस्म की इमिग्रेशन थी दिस इज इंटरेस्टिंग आदित्य तो उसका भी बैकग्राउंड देखने की ज़रूरत है कि हम यूके की एक एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट टू डाइसेक्ट कि ब्रेक्सिट का सबसे बड़ा कीप इट शॉर्ट ब्रेक्सिट का सबसे बड़ा क्या इशू था कि इमिग्रेशन आ गई but little do people realize that just to keep the economy to the level it is existent today in the United Kingdom, they are going to be in a shortfall of 18% of people of working age who hold a specific kind of skills if they do not go for immigration. एक दम से तो आपका डॉक्टर इंजीनियर और मजदूर ट्रेन होके नहीं आ जाएगा ठीक है तो वो उनकी मजबूरी है in terms of getting immigration. I am not saying कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी मजबूरी नहीं है वहाँ पे काम करना but at the end of the day the fact of the matter is कि it is मजबूरी on both sides
कोई किसी की फेवर नहीं वहाँ पे कर रहा। और अगर आप लोकल पॉलिटिक्स को देखें तो उसके अंदर अभी गियर्ट विल्डर्स और लपेन के ही मेन बातचीत चली है। तो अगेन इंडिया का मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ वेयर आदित्य बेसिकली मेक्स दैट स्टेटमेंट देयर इज रिलेटिवली नन टू एनी इजरायली और पैलेस्टीनियन पीपल और कम्युनिटीज रिजाइडिंग देयर। लेकिन जब आप यूके की या आप यूएस की या आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको खाली ये दो actual communities नजर नहीं आएंगी। They exist over there. They're flourishing over there. They're part and parcel of the society over there. On top of that, आपको pro Zionist लॉबीज नजर आएंगी, आपको प्रो मुसलमान कम्युनिटी को इन्हांस करने वाली कम्युनिटीज नजर आएंगी, और आपको उस तरह के क्रिश्चियंस भी नजर आएंगे जो वो चीजों को लेके आते हैं। दैट इज अ वेरी कोर central part of the politics in terms of who is elected, who is going to win, what are the policies going to be in regards to that। और उसके अंदर अगर लोग ये समझते हैं कि इन प्रोटेस्ट की वजह से पैलेस्टीनियंस को कोई फायदा हुआ इन रिसेंट टाइम्स, तो प्रोटेस्टर्स को और हमास और ऑल दिस डिबेट in terms of what's happened in the last 6 or 7 weeks, that has weakened the Palestinian lobby, that has weakened the Muslim lobby, that has weakened the pro liberal lobbies further in the European and the continent as well as the Americas। और उसका सबसे बड़ा रिजल्टेंट आपको क्या नजर आता है कि स्पेशली द लेफ्ट विंग हैज गॉन वेरी वोक इन टर्म्स ऑफ हाउ दे स्पीक एज वेल। तो उनको तो लूनेटिक और लूनी समझ के आम बंदा आज के दौर के अंदर रिजेक्ट कर रहा है। अगर इन कंट्रीज के अंदर देखें, दे नो लॉन्गर इन देयर मेजॉरिटी टॉक अबाउट पॉलिसीज बट दे रादर टॉक अबाउट अदर स्टफ। And when you've got them on one side preaching about a certain country, and then you on the other hand have the Israelis and the pro-Zionist movement, and then you have the Muslims, जिनको it is a match made in heaven for the right wing। It's a perfect recipe। आपको वो सीधी सीधी चीज नजर आती है, एंटी सेमाइट सेंटिमेंट जो इतना था भी नहीं, उसको पिछले 6 हफ्ते के अंदर एम्पलीफाई किया गया इन कंट्रीज के अंदर। और और उसके ऊपर द फाइनल चेरी ऑन द टॉप इज कि जब लोग आके ये कहते हैं कि हम तो जी ये कर देंगे, और उनको एक यहूदी और एक जायनिस्ट के बिटवीन डिफरेंस नहीं नजर आता, उनकी स्टेटमेंट्स वायरल होती हैं। जिस तरह इसराइलियों की भी हुई थी where they were mocking the Palestinians, उन्होंने तो वो करके रेक्टिफाई कर दिया। आप देखें कि वो सोशल मीडिया से गायब हो गई वो वीडियोस, बिकॉज दे रियलाइज दे कॉजिंग मोर डैमेज टू देयर कॉज देन एनीथिंग एल्स दे लर्न, राइट। लेकिन हमारे लोगों ने तो जो मुसलमान लोग हैं या आप कह लें कि प्रो पैलेस्टाइन लोग हैं किसी भी वजह से, अगर आप उनका रिजल्टेंट देखें तो व्हाट यू विल नोटिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। दे एम्पलीफाइड द अदर स्टफ, और उसके अंदर वो एक ख्वाबों की दुनिया के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे देर एक्चुअली थिंकिंग देर हेल्पिंग द पैलेस्टीनियंस, बट दे हैव इन द लास्ट 6 weeks damaged whatever was created, whatever the Palestinians had worked for, whatever those protesters had achieved। उसके अंदर कुछ हाइलाइट्स हैं जिस तरह बसीम with P.S. Morgan, he spoke very well, but after that everything has been downhill। तो मैं अभी भी यही क्वेश्चन करना चाहूंगा, what have Palestinians gained and why has Hamas all of a sudden now agreed to this temporary ceasefire with the state of Israel? ये दोनों पार्टीज किस बात के ऊपर रुक गई हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। ये अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया, इस पे ओपिनियन प्रॉपर्ली नहीं दिया। वी आर गोइंग टूवर्ड्स के कौन जालिम है, वो हमें पता है कौन जालिम है,
हमें पता है कि कौन रेसिस्ट है, वी ऑलरेडी नो दैट। हमें एक दूसरे की ओपिनियंस का भी पता है कि इस चीज पे ओपिनियन क्या है। लेकिन why a pause? Why not a ceasefire on permanent grounds? Why is this temporary? Why does this have a shelf life of 4 days and now extended to a further 3 days? Is my question for anyone who wants to answer out of you guys. अच्छा जी, मुझे डॉक्टर साहब इजाज़त है, मैं शाह साहब को सर थोड़ा सा एड्रेस कर लूँ, उनके साथ अपने थॉट शेयर कर लूँ। डेफिनेटली अली भाई, डेफिनेटली। जी जी जी, देखिए जी, डॉक्टर साहब से भी बात करनी थी, बाई चांस शाह जी ने भी उस लाइन पे बात की। देखिए शाह जी, अ, मुझे नहीं पता कि आपने ये इतना लंबा आप इस तरह बह गए हैं एक ही साइड पे कि कुछ नहीं हासिल हुआ अभी तक, कुछ नहीं हुआ। इट इज ट्रेडिशनल इमोशन, ये जो आपने फील्ड पकड़ी है, मुझे नहीं याद कि कब स्पेन, कब इटली में, कब इस तरह का यूरोपियन यूनियन में दरारें आई हैं, यूरोपियन यूनियन में इतना इख्तलाफ आया है। मुझे तो नहीं याद कि आज तक साउथ अफ्रीका या इस तरह के मुल्कों ने टाइज इसराइल से तोड़ दी हो इस वजह से। आपने बिल्कुल ही ला पा के हाथ पकड़ा के उनको कहा कि लो काका, ये डालो शॉपिंग बैग में, शॉपर में डालो अपनी सारी कमाई और निकल जाओ। ऐसा नहीं हुआ। आज जितनी दुनिया ज्यादा वोकल है एंटी इसराइल बात, एंटी जायनिस्ट की बात करने पे, मुझे नहीं मैं जो समझता हूँ, जो आज की यंग जनरेशन है, आपसे भी जो ज्यादा यंग जनरेशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिसाइजली मिलीनियल्स के बाद वाली की बात कर रहा हूँ, ये जो 14 15 16 18 20 की एज में है, उनका नैरेटिव स्टेट्स में बदल गया हुआ है। अली भाई, उनको पहली दफा इस तरह हुआ है। अली भाई, जी पहली जी बात यह है कि थोड़ा सा सुनने में गौर किया। आई डिड नॉट फॉर अ सेकंड से कि कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने क्वेश्चन किया क्या हासिल हुआ है, आप मुझे वो बताएं। यार वही है तकरीर, ये तो तुमने बांध रहा हो ना मौका, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ आपकी बात का। लिट देखें, मेरी बात सुने, स्पीकर आम तौर पे ऐसा भी कर सकता है, हर दफा नहीं, कि मैं अपनी बात को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए उसको थोड़ा सख्त करके पेश कर रहा हूँ। एटलीस्ट आई मे व्हाट आई वांटेड टू डिलीवर आई कैन डिलीवर, मैं मैं डिलीवरी करना अपोलोजाइज, चाह रहा आप डिलीवर करें, हूँ। नहीं लेकिन नहीं नहीं, मैं डिलीवरी ये नहीं करने लगा, मैं डिलीवर करने लगा हूँ। ठीक। आप अच्छा करें। लेकिन अच्छा बात ये है कि आई हैव टू बी फेयर टू माई सेल्फ एज वेल। मैंने ये क्लेम ही नहीं किया कि कुछ हासिल ठीक, किया या लूज किया। मैंने तो आप लोगों से क्वेश्चन किया, आ आप ये जाता है। जी 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 जी, और मैं भी अपनी थॉट शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये टोन ये इख्तियार की क्योंकि इस टोन को शायद ऑडियंस पसंद करती हो या हेट करती हो, तो मैंने ये रिस्क लिया है। मैं ये पेश करना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेरी थोड़ी वो चेन ऑफ थॉट्स का रिदम थोड़ा सा आया फर्क। ऐशा जी, जो साउथ अफ्रीका ने किया है, जिस तरह स्पेन का आ रहा है बयान, जिस तरह का इटली और ईयू में थोड़ी दरारें आ रही हैं, खुल के लोग एंटी सेमिटिक ये बात करना लग पड़ रहे हैं कि यार एंटी अगर मैं क्रिटिक ऑफ इसराइल हूँ तो मैं कैसे एंटी सेमिटिक हो गया हूँ। अमेरिका में इतने स्कॉलर्स बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे तो वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट मतलब पीछे रह गए हुए हैं। हालांकि वो एल्गोरिदम्स की गेम है, जो भी उनके हाथ है एल्गोरिदम्स में है सारे, उसके बावजूद मतलब आप ये देख लें कि आप कभी सोच सकते थे कि जो मेजर आपके जो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, अगर उन्होंने रहना है, वो बेन शपीरो का क्या हाल हुआ है, वो एंड्रयू टेट कहाँ चमक रहा है, वो क्या नाम है इनके, ये जो मेरे लिए तो है नहीं पता मुझे इन लोगों का, लेकिन यंग जनरेशन जो आपके 14 18 20 साल की है, वो इन लोगों को फॉलो करते हैं। फर्क पड़ा शाहजी, ये कहना कि ये टिपिकल 2014 और 16 वाला मामला हुआ है लोग भूल जाएंगे, असल में तकलीफ ही ये है आपके हिसाब में। अब ये दुनिया वो वाले चाइना की है जो 2014 में चाइना था, रशिया वो वाला है जो चल रहा है। चीजें हासिल हुई हैं, चीजें हाँ हासिल हुई हैं, अब उनको रिटेन करना, उसको आगे लेके चलना, वो बात अलग है। आप उस पे क्रिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि गुज़श्ता 1.5 महीने में, दो जी, मैं महीने ये होने वाले हैं, पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ वो नहीं क्या हुआ तो। चीज़ें हैं जो हासिल हुई हैं, वो बताएं ना। जी जी जी, मैंने अर्ज किया फॉर एग्जांपल, मैं आपको अब जैसे ये सबसे पहले मैं साउथ अफ्रीका की मिसाल दे रहा हूँ। साउथ अफ्रीका ने टाइज इसी इशू पे इसराइल की है, किसी मुसलमान कंट्री ने अभी तक नहीं की। ठीक है, ये तो प्रेजेंट हमने प्रेसिडेंट हमने नहीं देखा।
आपने ये जो स्पेन की बात देखी है, वो तो जाके वहां गजा पे मिलना चाह रहा है। ये प्रेसिडेंट तो नहीं हमने देखा पहले। फिर उसके बाद ये आपके जो सोशल मीडिया पे जो एक वो डर होता था कि जी हमारे एल्गोरिदम और फलाने ढमकाने नहीं बोलेंगे। मैं आपको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसको शायद कम लोग जानते होंगे, क्लब हाउस। क्लब हाउस पे मुझे अच्छी तरह याद है 7 8 9 10 नवंबर के आगे, अक्टूबर के आगे पीछे वो एक लड़का आया हमारे ऊपर, क्या नाम है, पैनल के ऊपर। उसने डीपी लगाई, उसने डीपी लगाई अपनी, और डीपी के उससे उसने ना वो एक आजकल बड़ी शायद चली हुई भी है कि वो हिटलर की वो थी फोटो, तो उसको उन्होंने मिक्स करके ना वो जो नेतन्याहू की उसपे फोटो लगाई हुई है, वो शायद आपकी नजरों से गुजरी हो। उसने एक दिन लगा के, उसने 1 घंटे 2 घंटे में उसका काउंटर रिपोर्ट हो गया। 2 दिन वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सका। आज मैं क्लब हाउस पे देख रहा हूँ रिसेंटली, मतलब आज नहीं, मतलब ये 1 2 हफ्ते से कितने लोगों ने वो लगा के घूम रहे हैं। तो सर फर्क तो पड़ा है, एल्गोरिदम से लेके सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके टॉप इन्फ्लुएंसर से लेके कंट्रीज के बायकॉट से लेके खुले प्रोटेस्ट होने तक, और प्रोटेस्ट से भी आगे जो इक्के दुक्के वाकया हो रहे हैं ये वाले, क्या नाम है इसके, फलस्तीनियों के और डायस्पोरा वगैरह में। ये ट्रेंड मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में इतने मोमेंटम पे नहीं देखा। आप ये क्रिटिक जरूर करें कि जी इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, बढ़िया आपने हासिल कर ली है, मुझे नहीं लग रहा कि आप रिटेन कर पाएंगे, वो बहस अलग है। आई वुड से कि ये भी इतने बुरे रिजल्ट नहीं है। मैं 33 नंबर पास होने के नहीं दूंगा, मैं 60 70 नंबर दूंगा जो लोगों ने प्रो इसराइल स्टांस लिया है। एंड आई कुड बी रॉन्ग, आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट्स। जी जनाब। जी जी। और कोई क्या हासिल किया, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल बेसिकली स्टेटेड दैट सेड। नहीं शाह जी, आप हासिल करवाना क्या चाह रहे हैं? आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि हासिल क्या किया, हासिल क्या किया। सर, वी आर सिटिंग डक्स and they were able to the sitting ducks made a bite. आपको अच्छे से पता है एवरीथिंग, द होल गेम इज स्टैक्ड आपने भी अगेंस्ट ये अस। बात कही थी ना, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ, आपने भी ये बात कही थी, I'm doing by your own words कि नहीं, सबने दरअसल देख बात लिया पता क्या है इसराइल जी? दंगा हो। नहीं नहीं, आप पता क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अच्छा ये सारा कुछ हो गया तो बंदे तो फिर भी मार गए, बंदे पहले भी मार रहे थे, ये सारा नहीं, कुछ मैं हो ये गया नहीं तो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ व्हाट इज द अचीवमेंट। ये जो आप बारी बारी कह रहे हो, कहीं पे पॉलिसी चेंज हुई, कहीं पे जिस तरह अभी नहीं भाई, साउथ अफ्रीका वो पे भी नहीं बात हुई है। है, वो होना भी नहीं था शाह जी। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट। यार आपके बट पाकिस्तान के अंदर आप तो लोग इतना हासिल क्या वाकया, किया, मुझे ये बताओ ना। लोगों की आगाही। अच्छा, so people are more aware. Furkan bhai, do you think, do you have a perspective on this, or Mahmoud? I think what I wanted to say वो सिड ने फ्रेम कर दिया awareness, and I think these events uh, I, I would give an example ताकि समझ आए, uh, and especially most of the panelists are from Pakistan. जैनब का एक केस हुआ था कसूर में, uh, and it basically shook the country. I won't go into details, but it basically shook the country, and it provided certain uh, tractions, especially legislative form में, and a bill was formed. Zainab Act कहते हैं उसे, बिल बन गया बाद में। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन का बिल था, एंड फॉर इयर्स बहुत से लोग ट्राई कर रहे थे उसे पुश करने के लिए, लेकिन नहीं आ रहा था, और भी सर्टन रीजंस की वजह से, जिसमें कुछ रिलीजियस एलिमेंट्स से ब्लॉक कर रहे थे। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम जो ट्रैक्शन बनी थी, ड्यू टू अवेयरनेस एंड द इमोशंस आपके हाई होते हैं, सेंटिमेंट्स आर हाई, सो इस तरह की चीजें मूव होती हैं। इसमें अवेयरनेस का एलिमेंट, आई टोटली एग्री। आगाही जो सिड ने कहा है, आई टोटली एग्री कि वो हुई है। वो कब तक रहती है? अगर इस टाइम पे, मैं यही कह रहा हूं, ना यूज किया जाए इसे कुछ सॉलिड करने के लिए, आई थिंक दिस इज जस्ट मोमेंटरली, एक आप इमोशंस में ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख नहीं रहा कोई इस तरह की किसी भी फोरम पे
कोई लॉन्ग टर्म पे बात हुई हो, या सीज फायर भी एज शाह डिस्क्राइब्ड इट, 4 days, नेक्स्ट वीक क्या होगा वी डोंट नो, वी एक्चुअली डोंट नो. तो उसमें मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव तो हुआ है, दैट आई वुड से, व्हिच इज अवेयरनेस, बट वो ट्रांसलेट होगी लॉन्ग टर्म implications में, that's I think we would see in the future. क्या कह सकते हैं, महीना 2 महीने, हफ्ता 2 हफ्ते, उसी में इंडिकेशन आपको मिल जाएगी कि क्या होगा. बाकी ये जो सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, पॉलिसीज रिलैक्स हो रही हैं, कहीं सेंसरशिप हो रही है, इससे कुछ भी अचीव मैंने होते आज तक नहीं देखा. कहीं भी, चाहे वो पॉलिटिक्स में आप चले जाएं या कहीं और किसी चीज में चले जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल लाइक this would translate into anything substantial, I would say. उसकी वजह भी है ना फुरकान भाई, इफ यू वांट सम actual substantial thing to happen, it never happens by vocalizing your ideas. It happens Furkan, with I have a further question to you, if you would like to highlight. So you think an I want to add achievement something, is Shaji. एक second. इकोनॉमिस्ट पे, द इकोनॉमिस्ट जो वेबसाइट है, उस पे पैलेस्टीनियन एम्बेसडर टू ब्रिटेन ने एक पूरा आर्टिकल दिया अबाउट हाउ द सीज फायर इज enemy of peace and how it would benefit Hamas, and the only solution towards happening in Gaza is by inverting the Oslo Accord, in fact recognizing the state of Palestine on 1967 borders and end the occupation. That's all it was saying. If you want, I can share it on the screen. Yeah, I would like to add to that, and Shah, उसके बाद you can go ahead with the question. 2021 मई में भी जब सीज फायर हुई थी ना, सिमिलर आर्टिकल्स केम आउट जिसमें बताया जा रहा था कि हाउ इट बेसिकली वैलिडेट्स द स्टांस ऑफ हमास, और बेसिकली सीज फायर से आप like it's not good for Israel. That's what the narrative was in 2021 में. There are certain publications जो अभी भी आ रही हैं जो कि इस पे आर्ग्यू कर रही हैं, तो हमें वो भी माइंड में रखना चाहिए कि what the no, but what do you classify as an achievement? Any of you, like no, what these are not achievements. These are not achievements. No, They no, are I'm quite asking vocal. what are achievements? Legislation would be an achievement, correct? A policy would be an achievement, correct? Yep. Somebody coming into power would be an achievement, correct? Yeah. Right? So, is there anyone on the panel who disagrees with what I've just stated or highlighted? Please. Like for instance, मैं एक और शाह मैं एक और एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान उठा के देता हूँ. 2014 धरना हुआ था एक, अवेयरनेस बहुत क्रिएट हुई, पीपल वर वेरी चार्ज्ड, वेरी इमोशनल, एंड दे वर बैकिंग खान. ठीक है, मेरे ऐसे भी लोग लाइक आई वाज लाइक, अगर if मैं पाकिस्तान होता तो मैं पहुंचता है पीटीआई का झंडा लगा के. खान भाई संभाल के, अली भाई कहीं प्रोटेस्ट ना कर ले फिर से. लेकिन but like अचीव क्या हुआ इन दी एंड? Did he come to power? 4 साल और लगे. Substantial, nothing was achieved. And में he was also like कि यार अब किस तरह बंद किया जाए. And then a very tragic incident happened and उसकी वजह से वो बंद हुआ, but achieve कुछ भी नहीं हुआ other than awareness, और वो भी लाइक जार्गन्स की बेस पे और पॉलिटिकल स्लोगन्स की बेस पे जो अवेयरनेस बनी थी. उस वक्त मैं भी समझ रहा था टू बी ऑनेस्ट कि लाइक अब खान ही है, लाइक अभी हुकूमत गिरी, अभी ये हुआ, नथिंग हैपेंड. तो मेरा ख्याल है कि इससे भी अभी तक इस्लामी का इज्मा देखते हैं ना, तो लगता है कि अगला इस्लाम आ गया. लेकिन फिर होता ये है कि वो लोग तो आ जाते हैं वहां पे
And if you ever happen to visit one of those places, you'll think कि पूरी दुनिया जमात इस्लामी और इसरार साहब को बड़ी मोहब्बत करने लग गई है, लेकिन then the reality is very different. But anyhow, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप एक बात को ऑब्जर्व करें और इस चीज़ को नोट करें। लास्ट 10 years there was no such thing in the West which you were hearing about anti-Semitism. मैं एक इशू हाईलाइट करने लगा। There was no such thing. There were organizations trying to portray that. और पैलेस्टाइन और इस्लामोफोबिया के को एक्चुअल इशू के तौर के ऊपर सोसाइटीज़ के अंदर पिछले 10 सालों से बहुत अरूज मिल रहा था, लोकल लेवल के ऊपर भी लेजिस्लेशन की शक्ल में, across Europe, across US, especially post Trump, it took a lot of root. And specifically, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर बिगिन किया, द सेकेंड लेयर टू दिस, उसके अंदर आपने देखा कि मुस्लिम्स वेंट थर्ड पार्टी ऑल टुगेदर। उसके अंदर नेगेटिव जो सारी मुसलमानों को एक्विटी मिलती थी, वो सारी रशिया ने और चाइना ने आपस के अंदर बांट ली। and we all saw that in at least in the last 2 years or so. अब आप आगे फर्दर मूव करें, आप जब स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन इज वन ऑफ दोज कंट्रीज, इसलिए लोकल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी नज़र में जब आप किसी भी जगह को देखते हैं तो स्पेन के अंदर, स्पेन हैपन्स टू बी वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसने ना कोविड के टाइम पे चाइना के साथ रिलेशनशिप ख़राब किए, ना उन्होंने 4G के जो नेटवर्क्स थे जब पूरा यूरोप और यूएस और वेस्टर्न अलायंसेस चाइना से डीकपलिंग और चीज़ें कर रही थी, ना उन्होंने उन चीज़ों को फारिग किया। एंड दे रिमेन्ड एन ओपन बुक प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड to how their relations with China were. That also Spain happens to be one of the only countries, ठीक है, जिसके लोकल पॉलिटिक्स के अंदर अगेन अगर आप नोट करें तो दे वर नॉट प्रो यूक्रेन और प्रो रशिया। They basically were a country, the only one of the only two countries in entire EU जो कि रशिया को कंडेम करने से शॉर्ट रिंग ऑन वेरियस ओकेजन्स। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड कंट्री जिसको ब्रिंग अप किया गया, वो थी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अगर आप आजकल के लोकल पॉलिटिक्स को देखें तो व्हाट यू विल सी इज देयर इज अ गाय हु इज emerging who used to be a subordinate of Nelson Mandela, then his ex-wife Minnie Mandela, ठीक है, he is almost turning up. Julius Malema उसका नाम है, and people should search him up. He's basically very pro-Russia and very pro-China, and because of that, majority of the South Africans have become extremely pro-Russia and extremely pro-China. Or opposition parties have no reasons but to basically state that, और जब आपके साउथ अफ्रीका ने रिलेशनशिप तोड़े इसराइल के साथ टू शो दैट दिस में, ठीक है, इट अगेन सेड बट वी विल नॉट एक्सेप्ट रशिया इन दैट वे, और हम पुतिन को वेलकम नहीं करेंगे जिस तरह मैलेमा करना चाहता है, राइट। तो वो उन्होंने अपने लोकल पॉलिटिक्स को देख के एक एक्शन लिया, बट अगेन I would still count that as an action. I will not completely discard that. Ali Bhai wrote a very good thing, at least in the context of South Africa. That was somewhat an achievement for the Palestinian cause. लेकिन अब अगर आप इस चीज को वैल्यूएट करें तो आपको एक दो पैटर्न नजर आ रहे हैं। एक आपको पैटर्न ये नजर आ रहा है कि लेजिस्लेशन वाइज यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और अमेरिकाज के अंदर, and when I say the Americas, I am not just talking about US and Canada, I am referring to Brazil, I'm referring to Argentina, I'm referring to Colombia, and specifically अगर आप उन जगहों के ऊपर देखें तो लेजिस्लेशन के तौर के ऊपर एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ लॉज भी बन रहे हैं फिर से,
ज्यूज के साथ ऑपरेशन क्या हो रहा है उसको भी देखा जा रहा है। रिलीजियस डॉगमा ऑफ सेकंड कमिंग ऑफ जीसस हैज ऑल बिकम मेन स्ट्रीम अगेन। ठीक है, और उन उन जगहों के ऊपर जो आपको अचीवमेंट नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि एक कंट्री के अंदर यूरोप में गियर्ट विल्डर्स इलेक्ट हुआ, उसी चीज उसी वेव को राइड करके लपेन गेंड सीट्स। यूनाइटेड किंगडम के अंदर फार राइट की गवर्नमेंट आने के बहुत ज्यादा मूवमेंट होने के चांसेस हैं। ऑल ऑफ अ सडन दोज पीपल, दोज individuals who had been sidelined for good 4 or 5 years, वो एक्सट्रीमली वोकल हुए। ठीक है, जितनी भी चीजें आपको लेजिस्लेशन के तौर पे नजर आई अक्रॉस दीज टू कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, जिन चीजों से इफेक्ट बनता है, ठीक है, उन्होंने एम्यूनिशन भी और आर्म्स भी इसराइल को प्रोवाइड किए। on top of that this turned into a batch, और जिन्होंने दूसरी साइड को सपोर्ट किया, it's that multipolar world again। अगर and it is right in your face, they're not supporting Palestine, Spain is not supporting Palestine, Spain is siding with Russia and China on this, and particularly, specifically with Russia very directly. And it is using that as a counter threat कि जिस तरह यूके बाहर गया, अगर हम बाहर चले गए, यू बीन कंप्लेनिंग टू अस, डू यू नो स्पेन डिफॉल्टर्स के अंदर था, they are seeking a deal for the EU, and if that deal is not provided to them, they are almost threatening that we will do exactly what the United Kingdom did and break free from EU। गियट विल्डर्स भी ये कर सकता है बहुत हद तक, बिकॉज ही और अगर नेदरलैंड्स और स्पेन इस पॉइंट के ऊपर ईयू को छोड़ के चले जाते हैं, और इवन स्पेन डज, दैट वुड बी अ ह्यूज डेंट इन द यूरोपियन यूनियन। मेडिटेरेनियन इज वेरी क्लोज टू ईस्टर्न यूरोप, और उस पूरे एरिया के अंदर रशिया विल हैव अ डायरेक्ट हेजेमनी ओवर द यूरोपियन कंट्रीज वेरी वेरी क्लियरली ओवरनाइट। तो ये चीजें कुछ होती हैं कि जिनको देखना पड़ता है। As far as the Palestinians legislation is concerned, there has not been a single move। अभी तक उनके बारे में, उनके साथ जो इजरायली कर रहे हैं उसको जरूर कुछ कंट्रीज कंडेम कर रही हैं, उन लेजिस्लेशन कोई नहीं पास की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जाके एड प्रोवाइड करेंगे, या ये सीज फायर परमानेंट होनी चाहिए, या दे जस्ट से कि वो कौन सा स्टेट का सोल्यूशन सपोर्ट करते हैं, लाइक सपोर्टिंग अ फुटबॉल टीम, एंड दैट्स अबाउट इट। इस सारी चीजों के अंदर जो पेपर के ऊपर और जो एक्शनरी वैल्यू के ऊपर किसी को अगर फायदा हो रहा है, तो वो इजरायली स्टेट को, सारे लॉज उनकी फेवर में बन रहे हैं, सारी गवर्नमेंट्स उस टाइप की आ रही हैं, एंड दैट सेंटिमेंट इज ग्रोइंग। तो ये मेरा ओपिनियन है उस चीज के ऊपर, एंड आई थिंक इट इज डिस्पिकेबल, इट्स हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे ज्यादातर लोग जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं वो इन बाकी चीजों को देखते नहीं हैं, और वो उन इमोशंस के अंदर खुश हो रहे हैं कि उनसे इन सारी हरकतों से, इन चीज़ों से कोई उनको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात ये कि हमास, ठीक है, और इसराइल के बिटवीन ये सीज फायर, और ये 4 दिन की क्यों हुई है, ताकि वो एक दूसरे के लोगों को फ्री करवा लें। ठीक है, जब वो एक्सचेंज ऑफ दोज कैप्टिव्स इज ओवर, Israel is going to continue doing what it's doing। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इट बॉयल्स डाउन टू। और जब आपकी 6 या 7 हफ्ते के फर्दर बाद एक परमानेंट सीज फायर होगी, तो वहां पे नेगोशिएशन पता है किस चीज की होगी। आज वो अगर आप आर्टिकल पढ़ो ना, लोकल पैलेस्टीनियंस के वीडियोस देखो, वो सब जगह पे घूम रहे हैं। ठीक है, ना वहाँ कोई स्कूल बचा, ना पावर स्टेशन बचे, ना वहाँ हॉस्पिटल्स बचे, ना वहाँ पे लोगों के घर बचे। अगर वो उनको कंप्लीटली फ्री भी कर देते हैं, उनको 50-60 साल तो अपने आप को रीबिल्ड करने में लग जाएंगे टू गेट टू इवन अ लेवल ऑफ अ डेवलपिंग नेशन। The area is completely destroyed।
तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत होती है। मेरे ओपिनियन में, बाकी सबकी अपनी ओपिनियन है। अगर आप इन चीज़ों को कंप्लीटली इग्नोर करके चलेंगे और ये सोचेंगे कि जी अब पहले 5 बंदों को पता था, अब 10,000 बंदों को पता लग गया है, लेकिन पेपर के ऊपर जब वही कंट्रीज़ वोट के लिए जाती हैं, तो वो तो कंप्लीट इज़राइल लॉबीज़ को वोट कर रही हैं। If Netherlands is something to go by, you've got a wave coming towards your way. And that is going to not only be harsh for Palestine, that is a huge issue for Muslims residing in these countries. ठीक है, जिस जिस रास्ते के ऊपर यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज जा रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, जो जो यूरोप ने ज्यूस के साथ किया था, मुस्लिम्स can very easily be next in these very countries. ये Shaji, are you far-fetched trying to tell me that Europe keep changing its flavors? कभी जूस का नहीं शायद जेनोसाइड कर दो, पता कभी मुसलमानों का कर दो। नहीं, it इसके seems अलावा like यहाँ पे एक और भी सोचने वाली चीज है ना शाह जी, कि आप कह रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट ये हुआ है एज इफ इट वाज नॉट, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। यार बट उम्मीद की बात नहीं है, और बात ये है कि in the last 10 years the narratives had changed, legislations had changed, इन जगहों के ऊपर, इन जगहों पे लॉज बने थे, उसके अंदर मुसलमानों के पास और सर्टन कम्युनिटीज के पास फ्रीडम ऑफ एक्सिक्यूशन आई थी, in terms of them being in positions in those committee rooms within those lobby groups to fight for their people, and they were doing it very successfully. आप अब उन प्रोटेस्ट के बारे में देख रहे हो, जरा सर्च करो कि लंदन के अंदर कोई ऐसा हफ्ता आखिरी 10 सालों के अंदर गुजरा था जब प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट नहीं हुए थे। और उन प्रोटेस्ट की आप रिजल्टेंट देखो कि जो लॉज बन रहे थे और जो उनके बिहाफ के ऊपर एड की इंक्रीज हो रही थी और उसके जो आउटकम थे, दैट nearly what diminished could the have been जी, silence done of अच्छा the अच्छा, differently? आई आप यहाँ थिंक पे आई ये थिंक एक आई मिनट ना, थिंक यहाँ मुझे मेरी बात खत्म करने दो, उसके यार चलो पहले तुम कर लो यार, मैं वहीं से कंटिन्यू कर। मैंने क्वेश्चन करना है ना, आप कंटिन्यू की सिर्फ लेके जा रहे हैं। यू आर टेलिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स जिनका हमें पता है पहले से कि भाई दिस इज द प्लान ऑफ द एनिमी। आप ये तो बता नहीं रहे हैं व्हाट एनीबॉडी कुड हैव डन डिफरेंटली। यू आर सेइंग थिंग्स लाइक वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, और उन मुसलमानों के साथ अगर ये सब कुछ होता है, अच्छा होता है, होना चाहिए, उनके साथ बनता है। आप कोई आपकी I तीन am really कंट्रीज को sorry. What you're stating right now is nothing short of ignorance. अगर आप सुन रहे होते तो मैं आपको ये बात बताता। I apologize that I am stating that to you. But the fact is कि जब legislations बनती थी, उनके अंदर फंड रेजर्स होते थे। वो फंड रेजर्स जो थे वो जाके पैलेस्टाइन के अंदर डेवलपमेंट करा रहे थे। Now half of them are banned. Do और you मुझे not आप realize that? ठीक है, and in लेजिस्लेशन these बनती थी, पूरी situations what बात could have सुनो। anybody done any, हम कुछ और यहाँ पे इस वक्त, आप इस वक्त कह रहे हैं कि वो सब ठीक हो नहीं, रहा है। हमने ये बात कंक्लूड की थी कि a legislation in a local country is going to be taken as an achievement. हमने यहाँ पे ये बात अच्छा डिफाइन की और उस टाइम पे मेरी पूरी बात खत्म होने दें प्लीज। ठीक है, हमने ये बात डिफाइन की थी, जो प्रैक्टिकल वेलफेयर एक कंट्री का अगर डायरेक्टली पैलेस्टाइन को या इसराइल को हो रहा है, हम उन दोनों लॉबीज को देखेंगे कि स्ट्रेंथ के अंदर कौन है उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर। तो जब पलटा दूसरी तरफ का हैवी था फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ, वो पलटा रातों रात तब्दील हुआ इस एक्शन के बाद। ये किस डिफरेंस ओके है। ओके, अच्छा किस सिट एक सेकंड, सिट एक सेकंड, वी आर गोइंग इन मुझे सर्कल्स। पता तो ठीक चले है, ना, if we are एक to सेकंड, put something वेट, सिट एक सेकंड, वी आर गोइंग इनटू सर्कल्स। एक क्लियर क्वेश्चन है, शाह हैज एक्सप्लेन्ड हिज पर्सपेक्टिव एट लेंथ, ठीक है, इन डिटेल, ठीक है। I think Ali Bhai had a question, but I would I think Ali Bhai and you were of the same opinion that something has been achieved. अदर देन अवेयरनेस, क्या अचीव हुआ है? क्या इसराइल की डिफेंस, जो उनके बायलैटरल टाइज थे डिफरेंट कंट्रीज के साथ, वो बंद हुए? डिफरेंट कंट्रीज अपने, लाइक वी डिस्कस्ड, सर्टेन बजट
कट करके अपने लोगों का उन्हें भेज रहे हैं इसराइल को अभी भी। लेजिस्लेशन पे शाह ने बात कर ली कि बहुत सी कंट्रीज में इन एसेंस एंटी एंटी पैलेस्टीन कहूं या क्या कहूं कि इट वुड अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पैलेस्टीनियंस इन अ बैड वे। ठीक है, इन शॉर्ट में करके बता रहा हूं, ये चीजें हुई हैं। तो अचीव क्या हुआ है, और जो कह रहे हैं कि बहुत कुछ वोकल हो गया है, उससे अचीव क्या हुआ है, आप लोग बताएं। शाह ने तो अपना पर्सपेक्टिव क्लियर कर दिया इन डिटेल। कांग्रेस अली हाँ भाई एंड सिट प्लीज गो अहेड कि अचीव यार हुआ क्या मैं है और मैं आगे मैं देख क्या रहे मुझे हैं। मुझे ये नजर जी आ रहा है मैं कंक्लूड अपनी बात को करूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि इसराइल गेन्ड अ लॉट आउट ऑफ दिस। ठीक है, और मुझे ये नजर आ रहा है कि जो पैलेस्टीनियंस थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, उनका जी लाइवलीहुड तबाह, उनके स्कूल कॉलेजेस बर्बाद। ठीक है, उनको जहां से चैरिटीज मिलती थी वो बैंड। ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है। तो तो जी मुझे ठीक अब है ये आपने शाह। ये बता ये तो मोटे नहीं अब मोटे लॉसेस हुए। आप मौत की बातें छोड़ दो, इस वक्त के कितने मर गए ना, वो तो इक्वेट करना जो है वो सबको ही पता है कि वो तो वैसे ही उसके बराबर है। बात शाजी ये है मुझे आपने कि यहाँ ये अचीवमेंट क्या हुई है। आप शाह ये जी लेट नहीं, लेट देम एक मिनट रिस्पॉन्ड। नहीं सिट एंड अली शबीर प्लीज रिस्पॉन्ड जी। हाँ बात ये है कि जी आप मुझसे पूछ रहे हैं शु कि आपके ऊपर अटैक हुआ है तो आपने जिस वक्त आपको मार पड़ रही थी गेम क्या किया है, आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं। उसके बाद कह रहे Said the question is, एक second, let me rephrase the question. Let me rephrase the question. Hold your emotions. The question is, what has been achieved for the Palestinian cause? जो कि आप लोग बात कर रहे थे, या हम लोग बात कर रहे थे रादर, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिनसे अवेयरनेस की बात आई थी, with a few deep breaths, understand the question. It's about what has been achieved. I'll go to Ali Bhai and then Sid, you can also add to that. Ali Bhai. जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने अच्छा रिफ्रेश कर दिया। मैं अदित्य चाह रहा था, अदित्य भी सुन के जाएँ। उन्होंने मुझे 5 वर्ड्स का एक स्टेटमेंट पे कहा था कि ये मैंने एग्जैजरेट किया या क्या किया, और इशा जी ने भी ये बात की। देखें, मुझे मजबूरी हो गई है कि मुझे ना एक एक सेइंग शेयर करने स्ट्रीट सेइंग शेयर करने लगा हूँ। वो ये कि अगर यहाँ कोई अंधा बंदा आके कहे कि जी मैं बड़ा नेक हूँ, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा, ये वो बातें हो रही हैं। ठीक है, बात ये हो रही है कि आप एक मेजर डायनामिक जो मेजर तरीन डायनामिक टेबल पे है या सारे इस एटमॉस्फेयर में कवर करती है, उसको डिस्कस नहीं किया। इसराइल ने कोई रहम करके ये चीज फायर नहीं किया, और ना ही कोई उसको जो दूसरे मुल्क जो हैं अपने वो मफादात को या अपने इंटरेस्ट को या अपनी अफोर्डेबिलिटी को पीछे करके ये सारी चीज़ें इसराइल के खिलाफ कर रहे हैं या इसराइल के हक में कर रहे हैं। अभी ये 2023 दिसंबर है सर, नवंबर है ये। इसमें जो वर्ल्ड डायनामिक्स पावर की हो गई हुई है, पहले वर्ल्ड यूनिपोलर थी, अब बाइपोलर भी नहीं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इसके अपने डायमेंशंस है, एनर्जी के अपने क्राइसिस हैं, उसको अपनी तरह उन्होंने मेंटेन करना है। ग्लोबल साउथ कहाँ नजर क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा यहाँ? क्यों नहीं ग्लोबल साउथ को डिस्कस कर रहे हैं आपने? जियोपॉलिटिकल को आप सिर्फ उसको इसराइल कितनी पिटाई कर रहा है फलस्तीन की, ये डिस्कस किया जा रहा है। ये डिस्कस नहीं किया जा रहा कि नए कितने प्लेयर्स इमर्ज हो चुके हैं। ये सारी चीजों को जब आप जोड़ते हैं साथ में, तस्वीर दूसरी निकलती है। वो कोई अगर फलस्तीन का कोई अगर उस पे रहम कर रहे हैं और सीज फायर पॉज आ गया है, या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो बच्चों की सोशल मीडिया पे एल्गोरिदम वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उस अन्य बंदे का तरह का हिसाब है कि वो अपनी हमारी वो रहम में नहीं कर रहे, उनकी मजबूरी में कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए आपकी यूक्रेन की जंग का क्या बना है, क्या अब उसने मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा खुश, तो सबसे ज्यादा आई डोंट वांट से बदकिस्मत पैनल की एक मतलब इस पैनल की वजह से बदकिस्मती का लफ्ज नहीं यूज करने लगा, पर उस जेलेंस्की का हाल क्या हो रहा होगा? उसकी तो जैकेट अगर पीली थी तो नीली होगी होगी। आप ये हिसाब लगाएं कि क्या हाल हुआ होगा उस बंदे का, जिसको आज ये कह रहे हैं कि पैक अप योर स्टफ एंड गो होम। तो ये सारी चीजें मैटर भी करती हैं। इस वजह से भी जो सूरत हाल है
वो शायद उसके जो मेंटेन रखना है इस रिदम को, प्रो पैलेस्टीनियन कॉज को थोड़ा हेल्प मिलेगा। ऑब्वियसली शाह जी, आप जो बातें कर रहे हैं वो तो कोई भी फलस्तीनी दुनिया में नहीं कहता। आप उसको इस तनाजर में क्यों नहीं लेते? और यहाँ मेरी पंच लाइन है, यही मैं क्लोज करके गुड नाइट करूंगा। थोड़ा सुन के जाऊंगा आप दोस्तों को, आदित्य को और आपको भी, ऐसे नहीं जाऊंगा। मेरी पंच लाइन ये है कि आप तो इनकरेज कर रहे हैं कि भाई डाई ऑन योर फीट, सॉरी, डाई ऑन योर नीज, नॉट ऑन ऑन योर फीट। वो कह रहे हैं कि यार मरते जलील थे उंजी होने पे, मरने पे थे हर रोज ही, ठीक है, लेट अस डाई ऑन आवर फीट। आप कह रहे हैं कि डाई ऑन वो नीज हो गए हैं, और उनको डाई ऑन नीज हो जाना चाहिए था, पर ये पंगा नहीं था लेना चाहिए। दैट्स ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर Thank you, Ali लिसनिंग। bhai. I think I'll go straight to Sid. Sid, please respond in detail what you wanted to say. मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, अब जो जो चीजें शादी ने बोली हैं, दीज वुड हैव हैपेंड नॉनदलेस अगर हमारी कोई समवट एग्जिस्टिंग इस्लामिक लॉबी या मुस्लिम लॉबी कहीं पे किसी जगह पे एग्जिस्ट करती भी है और वो कुछ काम कर भी रही थी, उससे 10 गुना ज्यादा तगड़ी जो सी है वो इजरायली लॉबी है। उन्होंने तो ये काम पहले से करने ही थे कि भाई एंटी सेमिटिज्म के इस तरह के लॉज बना दो, एंड व्हाट दे डू वेरी ओपनली एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट नहीं थे होने चाहिए। हम फिर करता तो बंदा तो करता क्या करता, गेन क्या किया? जिस वक्त आपको मार पड़ रही थी, आपको चपेड़े पड़ रही थी, उस वक्त आपने एक मुक्का लगा लिया, हाँ जी, ओवरऑल जो है आपका लॉस हुआ। अगर आपने इस सारे सिनेरियो को अपने फेवर में करना है, आई एम सॉरी टू से देर इज नो डिप्लोमेटिक आंसर टू दैट। when you are being culled, and I'm using this word very properly, the Muslims in that whole region from Arab Springs till now are being culled. You are supposed to take up arms, and if you have arms, then you can, अब हमारे पास जो से असला वगैरह है, हमास का तरीका सही नहीं है, वो अलग डिबेट है। जिन लोग कंट्रीज को करना चाहिए था, सर वो हमारी कंट्रीज थी, तुर्की था, पाकिस्तान था, इजिप्ट था, जॉर्डन था। बट सिंस वी आर ऑल कवर्ड, अगले लोगों ने तो ये सब कुछ फिर करना है ना। जिस वक्त आपकी आर्मी जो सी है वो सिर्फ आपका अपना मुल्क जो है वो कॉन्कर करने के ऊपर ही काबिज है, जिस वक्त इजिप्ट की आर्मी जो सी है वो सिर्फ इजिप्ट को कॉन्कर करने के ऊपर ही काबिज है, जिस वक्त जॉर्डन की आर्मी जो सी है वो सिर्फ जॉर्डन के अंदर जो है वो इंसर्जेंसीज को तबाह करके जो है वो किंगडम बचाने के ऊपर ही काबिज है। then this is what is going to happen to the Muslim nations across the board, until and unless you are some island Muslim countries all the way in South Asia, जहाँ पे यानी कि थोड़ा सा इन्वेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आपको ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर होना पड़ता है ताकि आपके ऊपर सनसेट ना करे। इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि एट दी एंड लॉबीज जो सी हैं, आपको क्या लगता है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी जो सी है वो बड़ी कोई पावरफुल है और उसका इफेक्ट होता है? वो भी यहाँ पे द पावरफुल एलीट इज अ बिट लेस पावरफुल इन यूरोप, बट इट इज स्टिल द पावरफुल एलीट। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ओपिनियंस का खूब Sid, जी जी I'm really sorry, and it's very sad that हम एक साइड को completely एक verdict pass on कर देते हैं कि जी इन्होंने तो जीतना ही था और ये जीत ही जाएंगे। तो बात ये है मेरे भाई कि अगर आप पोस्ट 9/11 Muslim lobby in Western countries को देखें तो they grew. They were competing every bit, both in legislation, being elected, and creating harmonies.
within their own community and seeking power in terms of politics and whatnot. उसके अंदर मोटे मोटे नाम तो आपको पता ही होंगे, but you're unaware of so many activists, media personnel, and other people who were part and parcel of that whole lobbying group which emerged, which was not only taking care of various rights of local Muslims, but Muslims who and conflict issues of Muslims around the globe, जिसके अंदर आपको उनके बिटवीन एक कोहिजन नजर आ रही थी, जिससे एक ग्लोबल लॉबी डेवलप होती हुई नजर आ रही थी. दैट्स व्हाट यू हैव बेसिकली मैनेज टू कंप्लीटली इग्नोर, और ना मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर तो उसकी अवेयरनेस कभी आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं. ये सोच के लोग बहुत खुश हो गए कि सादिक खान जो है वो मेयर ऑफ लंदन कैसे बन गया. ये देख के बड़े खुश हो गए कि कंजर्वेटिव्स या टूरीज की यूके के अंदर सईदा वारसी जो है वो चेयरमैन कैसे बन गई. लोगों ने ये नहीं देखा कि एक लिंडा सारसोर जैसी खातून जो है प्रोटेस्ट में सक्सेसफुल तो हो गई, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या थे. व्हाट वाज दैट स्ट्रगल, हाउ डिड इट बिगिन, where that lobby developed itself, and what kind of results it was seeking. ठीक है, वो जब आपके कश्मीर के प्रोटेस्ट से लेके पैलेस्टाइन, इराकी, अफगान प्रोटेस्ट तक निकले, पहुंचे, उन्होंने चीजें अचीव की. ठीक है, तो वो ऐसे नहीं था कि अमेरिका विदाउट प्रेशर या वेस्टर्न कंट्रीज विदाउट प्रेशर जो है वो उन चीजों पे आ रही थी. These were influences within the system, and that lobby has been surely weakened. और अचीवमेंट वाइज ये कह देना कि ये तो वैसे ही होना था is very ignorant thing to state. On what grounds do you state that? I completely disagree, because the fact of the matter is that I see 20 years of hard work of a lot of Muslims जिन्होंने अपने careers dedicate कर दिए इस चीज के ऊपर. ठीक है, and the fact is they did not make much money out of it. If they would have gone on the other side or been apolitical, they would have made a huge amount of money or gained a huge amount of capital. It was a financial loss for those people in their majority. तो उसके बाद मैं फर्दर इस चीज के ऊपर एक और चीज कहना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि हमने पैसे रेज करके गाजा के अंदर पावर स्टेशन बनाया, हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर्स लॉबी थी मुसलमानों की, पैलेस्टीनियंस की, हमने मेडिसिन उन जगहों पे पहुंचाई. टुडे दे आर बैंड, नॉट सेंड जैक शिट. जो एक पैलेस्टीनियन पैसे डायरेक्टली भेज सकता था अपने गरीब सफरिंग रिश्तेदारों को, वो आज नहीं भेज सकता. What could have anybody, no, Shaji, what could have anybody done anything different in these scenarios? आप ये सब मुझे बता रहे हैं. and single handedly ये जो आपकी सीज फायर है ना, ये आपकी आवाज नहीं आ रही, सेड you're muted. Am I audible now? ये मैं पता किस चीज के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, that this is why you will understand and you should understand this aspect of this entire situation, कि जिस पॉइंट के ऊपर हमास ने सीज फायर भी किया, from which this entire conversation spanned and spiraled, तो और इजराइल ने भी किया, तो दोनों ने अपने बेनिफिट के लिए किया. जब इन कंट्रीज ने, इन्होंने किस वजह से अपने बेनिफिट के लिए किया. हमास अगर यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होता अपने लोगों का, तो वो उन प्रिजनर्स की इस वक्त सोच में ना होता कि उनको हमने इजरायली लोगों से किस तरीके से रिलीज करवाना है. वो इस चीज के ऊपर सीज फायर कर रहा होता, निगोशिएट कर रहा होता कि तुम लोग हमारे लोगों के साथ क्या करोगे, हमारे पैलेस्टीनियंस के साथ तुम लोग क्या करोगे. वो इस चीज पे निगोशिएटिंग टेबल के, चुप करो एक सेकेंड,
वो इस चीज के ऊपर निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठा होता कि अब हमारे लोगों का फ्यूचर क्या है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली दे आर इंटरेस्टेड इन फ्यू ऑफ देयर पर्सनल who have been kidnapped or unorganizedly taken by the IDF authorities and put into jail. That's all who they are concerned about. बट और यू वर they're नॉट Okay. pretty डिस्कसिंग happy दैट कि शाजी। 4-5 दिन के बाद ना जब हमारे लोग आजाद हो जाएंगे, ठीक है। अभी अभी हम इसमें सबसे बड़ी हिपोक्रेसी इसराइल की पता है क्या है? हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमास ने हमारे ऊपर अटैक किया। हमास ने हमारे ऊपर अटैक करने के बाद, ठीक है, हम इनके साथ निगोशिएट नहीं करेंगे। हम तो इन्हें मारने के लिए, हम हमास को मारने के लिए पैलेस्टाइन के अंदर गाजा स्ट्रिप में घुस रहे हैं। These were the statements of the Israeli authorities, from their prime शाजी minister यू to वर नॉट everyone else. डिस्कसिंग एनी एक ऑफ सेकंड दिस। चुप, एक सेकंड चुप, थैंक यू। ठीक है, ये मैंने पॉइंट नहीं बनाया। आई एम गिविंग यू अ प्री टेक्स्ट, ठीक है। क्यों क्यों उन्होंने ये बात कही कि और अब वो उन्हीं के लोग जो लॉक्ड अप हैं उनके प्रिजन्स में उनको रिलीज कर रहे हैं। वो तो उन्हें मारने के लिए गए थे। जो अब कैप्टिव्स हैं उनको वो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और हमास इज हैप्पी विद दैट, वो उनके लोग रिलीज कर रहा है। व्हाट अबाउट द पैलेस्टीनियन पीपल? सवाल तो यहाँ पे ये है, उनको क्या मिल रहा है इस चीज के अंदर? 4 दिन चले की शाहजी, छुट्टी। शाहजी, let's Sid respond. जी Sid, in detail respond करो, and then we are going towards closing, and we are almost over time. But Sid, please respond in detail. मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, जो सारी की सारी प्रीवियस हमारी डिस्कशन रही है, इट वाज डिस्कसिंग मुस्लिम्स एट लार्ज जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके ऊपर। आप एंड पे बात ये कर रहे हैं जी हमास के जो सा कि nobody on the panel including अली भाई was ever in favor of हमास। ठीक, हमास ने जो कुछ किया है उनको हम लोग अपनी साइड के ऊपर कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जी मुसलमानों ने क्या किया, हर कोई बंदा ये कह रहा है जी मुसलमान लॉबीज, मुसलमान ममालिक, मुसलमान पब्लिक, आप कह रहे हैं कि नुकसान हुआ। हाँ जी, क्वेश्चन फिर ये बिल्डअप होता है कि भाई मुस्लिम्स एट लार्ज क्या कर सकते थे। आप अगर इस सारे मामले के अंदर सब्जेक्ट बना रहे थे हमास को, nobody is taking any point of view of This Hamas in any। ceasefire is between who? Shahji, let him complete ना, Shahji, let him complete in detail, please. जी Sid. उस सारी डिस्कशन के अंदर हमास का पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी बंदा जो है उसके जहन में नहीं है, क्योंकि हम उसको अपनी पार्टी समझते नहीं है, क्योंकि हम उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। जिस वक्त आप बात करते हैं जी मुसलमानों का क्या करना चाहिए, मैं आपसे बार बार ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हाट कुड हैव वी डन डिफरेंटली इन ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि भी हम क्या कर सकते थे। आपके जहन में है हमास, आप कम से कम ये क्लेरिफाई करें कि जब आप दो पार्टीज की बात कर रहे हैं, इजराइल लॉबी की और मुस्लिम लॉबी की आप बात कर रहे हैं, तो वो एक सेपरेट डिस्कशन है। एंड पे आप बात ये कर रहे हैं कि जी हमास ने की, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नॉट इंडोर्स्ड बाय मी, नॉट इंडोर्स्ड बाय यू और एनीबॉडी ऑन द पैनल। सीजफायर किसके बिटवीन हुई है? सीज फायर हमास और उसके बीच में हुआ है, कैप्टिव्स नो किसके डाउट अबाउट रिलीज इट। हो रहे हैं? हमास और इसराइल के। अच्छा, तो पैलेस्टीनियन लोग कहाँ पे गए? पैलेस्टीनियन लोग सर जी अवेयरनेस किस चीज की फिर फैली? अवेयरनेस, एंटी पैलेस्टीनियन लोग उन कंट्रीज में उन्हें शुरू हो गए, ठीक है। दूसरों ने प्रो रशिया प्रो चाइना स्टांस लेके उसमें किया। पैलेस्टीनियंस के लिए क्या होगा? हाँ जी सर, जब आप ये बात जी कर Sid. रहे हैं तो फिर आप डिस्कशन दोबारा जो सी है वो मुस्लिम्स एट लार्ज के ऊपर लेके आ डिस्कशन जाते हैं। शुरू से ही मुस्लिम्स के करने के लिए नहीं मैं कुछ पूछ रहा, मैं ये कह रहा हूँ पैलेस्टीनियंस को क्या गेन हो रहा है इस चीज? पैलेस्टीनियंस को ना तो हमास की तरफ से कुछ गेन होगा, ना अमेरिका की तरफ इस से कुछ पूरी गेन होगा। कंडीशन से किसी से भी क्या गेन हो रहा है? हाँ, मुस्लिम पैलेस्टीनियंस को सिर्फ एक ही सिचुएशन में गेन हो सकता है, इफ नहीं, इट इस इज वक्त तक एवर। क्या गेन हुआ है? इस वक्त तक तो सर जी उनके ऊपर तबाही मची हुई है, हम सबको पता है, नजर आ रहा है। व्हाट आर यू गोइंग टू तो ये मिल्क आउट ऑफ सीज दिस? फायर जो है इसका क्या रिजल्टेंट है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन But व्हेन Shah, allow me, Sid, allow me.
Shah Sid has a very fair point. Like, ये जो सारा सिनेरियो डेवलप हुआ है, what my opinion was कि ये जो protests हैं, where the argument started, इसका awareness हुई है, that I agree. But what could have been done differently is a very valid argument which Sid is raising. कि क्या कर सकते थे जिसकी वजह से ये जो legislation और जो सारे steps गए हैं जो कि Palestinians को in essence affect करेंगे, not in a good way. I think कुछ होता ना होता इन दी एंड रिजल्टेंट सेम रहना था. दैट्स व्हाट सिट इज सेइंग. अगर मैं गलत कह रहा हूं सिट तो मुझे करेक्ट कर Yeah, दो. and I एंड दैट completely इज दैट disagree इज with that. दैट इज अ फेयर पॉइंट. व्हाई? No, I completely disagree with that. आप देखें हमास के साथ they have successfully in the last 6 or 8 weeks uh, uh, जो एक फाइन लाइन थी दो ग्रुप्स के अंदर वो कम्प्लीटली डिमिनिश हो गई है. आज पैलेस्टाइन और इसराइल का जो सीज फायर है अपेरेंटली राइट उसको लोग पैलेस्टाइन और इसराइल का सीज फायर दे के पेश कर रहे हैं. पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जा रहा है. far right governments elect होना शुरू हो गई हैं. So in that entire context, they have succeeded. और अभी जब आगे बात होगी जब परमानेंट सीज फायर की बात होगी that will be further. You've got already countries waiting in the wings rebuilding Gaza Strip project चलेगा है ना. उससे पहले निगोशिएशन होगी कि इसराइल कब यहाँ से बाहर जाएगा. तो I think Israeli lobby has not only won but Hamas has helped them win, and that is very imperative thing and we need to realize, and these are also my final comments in on this entire subject. So after this you guys can pursue with yours. ठीक है. इस इंटायर सिचुएशन के अंदर रिजल्टेंट क्या होगा और उसका रिजल्टेंट क्या है वो ये है बड़ी सिंपली कि people who are pro Russia and China will fall onto those banks. जो दूसरी साइड पे हैं वो उस साइड पे चले जाएंगे. negotiation rebuilding की आएगी. Saudis will step up in various ways and that is it. Palestine will be forgotten for a good long time. कोई प्रोटेस्ट भी करने के लिए बाहर निकलेगा इन कंट्रीज के अंदर तो वो कहेंगे these are time wasters. ये तो सारे जो चीजें हैं this cannot be resolved between the two countries. लिबरल्स जो हैं वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट होके कहेंगे we have other issues to discuss. जो अभी लेफ्टी पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है वो कहेंगे कि दोनों साइड्स जो हैं वो बस झगड़ा ही करती रहेंगी. ठीक है. Because successfully in the mind of the masses there is today no difference between Palestine and Israel. And there is there is no difference between Palestine and Hamas. One and the same thing. They've succeeded in doing that, promoting that. जब भी लोग हमास की बात करेंगे वो समझेंगे पैलेस्टाइन की हो रही है and vice versa. And that is a sad part. It is a complete failure. Hamas has been the biggest ally of state of Israel single-handedly in the last 6 weeks. And they've turned their tables around in favor of Israel in form of legislation, supply of arms, regression of Palestinian state or the state they were in uh, to 50 years behind. They've been bombed back. और जो अभी बज़ाहिर उनकी सपोर्ट कर रहे हैं they will make money out of that misery by going and getting contracts of rebuilding. Thank you very much. Sid, please go ahead with the final comments. Uh, my final comments are going to be Furqan bhai ke it is only the Muslim countries and the Muslim nations that can actually defeat Hamas in all of this. The resolution, considering the realities of Israel, considering the ambitions of Israel, and the, I'm sorry to say,
the general populace of Israel, the very well educated general public of Israel, the way that they behave is only going to be a military answer to Israel by standard Islamic countries' armies. They will not stop killing and culling Palestinians until they know that if we do it, the countries surrounding us are going to attack us. जहाँ तक बात है कि the narrative is that Palestine is Hamas, the amount of times the news media outlets have asked, especially in the West, what about Hamas? What about Hamas? What about Hamas? I think the people are going to build the perception that Hamas is not Palestine, uh, if that is what we're assuming. The solution of this, or the whole scenario, the only way that we can even get a two-state solution is if Israel knows that they cannot consider non-Jewish people as animals, because if they do, there will be a reaction to it with force. That's my final comments. Thank you, Sid. I'll go ahead with my final comments. And like I think हुआ क्या है, जो भी प्रोटेस्ट हुए, अवेयरनेस डेफिनेटली हुई है. द पॉइंट दैट वाज रेज्ड कि क्या चीज डिफरेंटली की जाती कि ये सारा सिनेरियो इस तरह ना बनता, जिससे जो जो शाह was saying, legislation wise and all the other interventions that have already been done, I think not much could have been done differently. तीसरी बात, I think uh, Israel making a ceasefire, a code, deal, whatever, with Hamas, it's also being labeled as a weakness of Israel. They conceded to Hamas. उन्होंने अपने जो prisoners exchange, जो कि आज का टॉपिक भी था, उसे हमने टच लाइटली किया, बट वो करने के लिए it's a weak stance for Israel as well, and it's not what I'm saying. There are publications which say that, and they have strengthened Hamas, and they have made a deal with the so-called terrorist organization. So this is something I think we should look into more detail. It's not that simple that this deal would make Israel more powerful, but the perception of Israel is also weakened, I would say, in a way. Ji Maham. Before Maham speaks, I have to highlight something very small, and that is exchanges between Hamas and Israel have existed for the last 40 years on a regular basis. This is not the first time. They've always conducted that. That is one of the things which consecutive Israeli governments and Netanyahu specifically has been criticized for more than a decade or so itself. So this is nothing new. This is their normal proceedings. I don't really have much to say about this. शाजी 4 decades नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक हमास उससे पहले कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी. नहीं नहीं, हमास ही थी. हमास से ही इन्होंने पास के अंदर बहुत दफ़ा निगोशिएट किया है. प्रिजनर एक्सचेंजेस भी हमेशा हुए हैं. And that has existed from the time when even Yasser Arafat of PLO was alive. तो उस टाइम के ऊपर भी he used to mediate. PLO के लोगों को तो ये जाके नहीं पकड़ते थे, हमास के ही लोग पकड़े जाते थे. And it was always Hamas and Israelis till now. ये तो उनकी आप यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं कि it is just something which happens on a very regular basis. And that's why I'm saying we should discuss it, क्योंकि by that logic, जो if it's a norm, it's not a big deal. और उससे Palestinians equate to Hamas, that logic also nullifies in a way. Ji Maham.
I don't really have much to say. This is it. We're going to end this session. Subscribe to our channel. Thank you for listening to us. Thank you for joining in on the discussion. Subscribe to the channel. Press the bell button so that you can get regular update to listen to different kind of debates about different issues. For now, have a good night or have a good day. Thank you for listening in. Khudafis.